but we will be going at a good speed and okay. Mic testing हुई है ऊपर की? Okay, I'll try to use 3 mics so that I am audible. We need to test the mics here. Let's just relax for a minute. ये दोनों माइक भी ना ऑन रहे हैं. किसी को टॉयलेट जाना है? They can. Anyone who wants to use the toilet, they can go. Because lots of things are to be discussed today. First and foremost, we will be, of course, discussing about the CAT paper. Then, slowly, we'll be discussing about things which are related to, apart from CAT, what are the things that you guys have to focus upon. And today, we have called some, not all, some of last year Excelsiors who will be maybe presenting their journey, sharing their story, the challenges that they have faced. It's more like a classroom session. So, मैं आप लोग सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग रिलैक्स करें. जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, बीच में भी इंटरप्ट कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि यू हैव टू वेट कि जब सेशन खत्म होगा तब आप कुछ डाउट पूछना चाहेंगे. यू कैन आस्क एनी क्वेरी एट एनी मोमेंट बाय रेजिंग योर हैंड. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये माइक ऑन है कि नहीं? ओके, सो फर्स्ट I want all of you to treat this as a classroom session. This is not a reality show. This is like a classroom only. It's just that there are many students and I have to address all of you. That's the reason this kind of a setup is there instead of a classroom. Because no classroom can have 800 students in one classroom. So the purpose is CAT initiation. CAT is a very important option. It's the most important option. Apart from the top 6 IIMs, FMS, if there is any other institute which is worth trying for, it is XLRI. XLRI में my personal experience has been कि जितने भी बच्चे यहाँ से ट्रेन होके गए XLRI, जब भी मेरे से उनकी बात हुई या उन्होंने अपने प्लेसमेंट के बारे में बात किया, तो सबके प्लेसमेंट 50 लाख रुपीस से ज़्यादा थे. यानी कि इट्स अ टॉप लेवल B schools. You start your career only with a ₹500 crore plus package in India. So when we talk about top institutes, वैसे एक मज़ेदार टर्म मैंने कॉइन किया, ब्लैक कैट्स. Of course, it's a no-brainer for those who have converted what it means. What is black cats? I को हटा दिया है उससे. So black cats are the top 5 IIMs. But apart from these blackie, those are the top 6 because there are 20 IIMs. And there is a huge difference. Everyone knows it. Very few people may not be knowing it. It's the same difference between maybe जो बच्चे बीटेक किए हुए हैं और IIT कानपुर से हैं, IIT कानपुर versus maybe a very new IIT, say like IIT Patna or some other IIT. There is no comparison. Same is the case with the 20 IIMs. Someone might get happy that, yeah, I'm going to IIM Jammu, I'm going to IIM Bodh Gaya, I'm going to IIM Sirmaur, Sambalpur, Nagpur, Amritsar, Vishakhapatnam. These are not, they are called IIMs, but they don't carry the same weight, the same exposure, the same everything, like everything. Right from the infrastructure, to your experience, to your peer group, to the international student exchange program, to the summer placements, to the final placements, there is no comparison. These old IIMs and the new IIMs and the baby IIMs, there are actually 4 categories of IIMs. First is the top 6 IIMs. In that also ABC is the best. So I have mentored students who have repeated CAT year and year again because they would have got Lucknow Kozhikode, but they were not getting ABC. Some of them are here also today. Many students I have trained, especially those who are BTech from top-notch institutes.
they just want to go to ABC because they're already at a good place. They'll already get a good placement. So it's worth it only if they go to the ABC. So they fight for ABC and they make it. They make it. It takes 1 year, for some it takes 2 years, for some it has taken 3 years. But then in Lucknow and Kanpur region, one problem I have seen is that people are too much in love with their youth. What it means is, they don't believe in dropping year. क्यों? साल चला जाएगा. मतलब अगर साल रह भी लिया तो क्या कर लेते? You have to think like this. वो साल अगर आप, बहुत लोग हैं यहाँ पर मैं जानता हूँ जो लोग के घर पे भी प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर भी करती होगी कि ईयर ड्रॉप क्यों करेंगे, क्यों, कुछ भी जो भी मिल रहा है ले लो. नो, डोंट डू दैट. इट्स अ बिग गेम. MBA from a top B school is a big game. If you're lucky, then in your mid-20s, or by the time you are edging 30s, you are earning in crores bracket. And in your 40s, if you're ambitious, you can take it to few hundred crores, few thousand crores. But I'm talking only about the top B schools here. It's a big game. It's a very, very big game. It is shocking that despite the economy facing hurdles like demonetization, GST, Corona, or Russia-Ukraine war, or many other things, the placements at the top business schools have been skyrocketing year after year. To the extent that in today's scenario, if you take any big institute's name, whether it's an IIM Ahmedabad or a Bangalore or a Calcutta or even an SP Jain or an FMS or an XLRI, all of them have a mean means average domestic salary of more than 35 lakhs. That's the average. If you're a good student, like I recall, when I passed out of IIM Kozhikode, my salary was 3 times the average salary. So if you're a good student, you'll be getting at least 3 times this average salary of 35 plus lakh. That's the reason I had circulated the news also a few weeks ago that 12 students have bagged 1.12 crore in IIM Indore, and this is the domestic placement. I went to an IIM because my brother went to an IIM, and in the year 2000, he was in IIM Ahmedabad, he got a 1 crore plus package in the year 2000. That time, the international packages used to be 1 crore plus. Now, he was in Ahmedabad. Ahmedabad is way better than IIM Indore. Even in IIM Indore, there are crore plus domestic packages to many students. So the trend is changing. Why? Because the Indian economy is doing very well in other way. What is that other way? Big companies getting big investments, wanting management graduates from big business schools in various domains, and especially with the industry 4.0, with things like AI, augmented reality, machine learning, IoT, there will be more need for those people who understand the market. So there's going to be a more demand of qualified people, capable people, talented people, skilled people. That's the reason the top B school makes a big, big difference. It's like आपने 1-2 साल खोया, लेकिन आपने हो सकता है 100 साल बचा लिया. Because maybe वो आप जो opportunity miss कर गए, it's not impossible to do something big despite that, but a big opportunity is gone. It is gone in front of you. It's like, the same scene I imagine is when the American troops were pulling out of Taliban, so there were photographs of people even jumping on the planes and all somehow कि किसी तरह लटक के पहुंच जाए. So the opportunity will be gone. You need to be serious. So that's the reason I said fear, seriousness. See, I don't have to crack CAT examination. I have cracked it. So I will be relaxed. But if you guys are not relaxed, I totally understand it. I can relate to it because during your time, even I was not relaxed. It's very difficult to do time management. It's difficult to be disciplined. It's difficult to believe in your dream. Everyone sees dreams. Do you know that? Even someone who will be sweeping the streets will be having daydreams and dreams that guy is becoming big or things like that. Very few people believe in them. Why do they say believe in yourself, believe in yourself? Because people don't believe in themselves. They don't believe they have the ability. They don't believe they can do it. And that's the reason they don't do it. Because they don't believe only at the first place. And this examination is such a brilliant examination because it is not a very tough examination. आज जब आप लोगों को मैं CAT में जो स्कोर आता है और जो परसेंटाइल आता है उसका करस्पॉन्डेंस दिखाऊंगा, आप लोग को ये देख के बहुत ही शॉकिंग लगेगा कि इतने में ही इतना बन जाता है. जस्ट इन सच अ लेस स्कोर यू आर गेटिंग दिस परसेंटाइल. So we'll discuss that. So first and the foremost thing that you need to do is
you please believe in yourself. Even if you don't want to believe in yourself for the rest of your life, it's okay. But this is the career phase of your life. You'll be making a big jump in your life. You need to believe in yourself. I have seen all types of students, all categories of students, different family backgrounds, different academic backgrounds, some good in studies, some bad in studies, poor, zero exposure, some with Hindi medium background, some with very pathetic maths background. So I have seen all kinds of people cracking CAT and going to top IIMs. When I say top IIM, I'm not like some other CAT coaching institute which is like a loser and saying that, hey, look at this boy, he's going to IIM. Finally, chalo IIM Jammu ja raha hai. No, that is not what our aim is, our ambition is. As long as you make it to the top 6 IIMs, FMS, XLRI, SP Jain, IIT Bombay, IIT Delhi, NITI Mumbai, IIFT, you have made it to the top league. This is basically the top league. And those who are interested in HR, TIS Mumbai. Then SIBM Pune. Do you know an institute like SIBM Pune? So Symbiosis is having 17, 18 or now maybe 20, 25 institutes, MBA institutes. Only SIBM Pune is very popular because its average salary is 27 lakhs plus. It's a big thing. So you have got some institutes like NM Mumbai, SIBM Pune, which can save you. IIM Shillong, which can save you. But of course, this is not the top league. The top league, I have already mentioned what is the top league. And in that also, if you get an opportunity like these students who are going to only the top 5 or 6 in the country, it's worth it. It's totally worth it. Because now they will go there and they will, first thing, what's the first thing that will happen to them? The first thing that will happen to them, as much I can, relate to my days is, the first thing that's going to happen to them is that they will have some sort of confidence in them because of going there. That's the first thing they will have. The second thing is, because of the interaction with people coming from different backgrounds and all, a lot of their notions or a lot of their conditioning is going to change. So they will receive exposure. Third thing is, by November, December, the summer placement starts happening. When they get placed and they see that the stipend only is so lucrative, they will be, yes, we have started getting rich also now. By the time they get their final placements, they will be at least breaking some barriers in their life. And the exposure, of course, as you go to a better MBA institute, the exposure is going to just skyrocket. So my pitch today is do not compromise. We'll discuss about the paper. It's a brilliant career option. MBA is a brilliant career option. Why? The paper is so easy. I'm from a non-maths background, most of you must be knowing. I did BA in English literature. And then I had joined Campus Law College, that is Delhi University's law school. So I was not doing maths at all. I was not fond also of maths. But once I started preparing for CAT, I started solving maths and I saw that this is very good. Why it is very good? Because once you understand the concepts, you will get the answer. And you'll get the answer pretty fast. Today, Dheeraj sir is also here. He was my CAT mentor when I was preparing for CAT when I was in Delhi Law College. And then I was not able to crack that time. Then I returned and from Lucknow I re-prepared for CAT. I didn't get a very, very high percentile also. I got a 99.52. Why? Because CAT can be a bad day also. I was preparing for a 99.9 plus, but I got a 99.5 plus. So your preparation has to be in such a way that ऐसा थोड़ी कि सारे mocks में same score आता है, same percentile आता है. There'll be your minima, there'll be your maxima. CAT, anything can happen. So your minima has to be as such that you get through black cats. You become a black cat. At least that much has to be there. So now it is different. During my time, it was different. Now, maybe someone is a hotel management graduate. At an 85 percentile, he can become a black cat. Depends what's your background. एक लॉ का बच्चा है, उसका कट ऑफ बहुत कम होगा. एक बीए का बच्चा है, उसका बहुत कम कट ऑफ होगा. एक जनरल कैटेगरी इंजीनियर मेल है. कितने यहाँ पर हाथ उठाओ? जेम्स. दे आर कॉल्ड जेम्स. सम ऑफ देम आर देयर. सो उनका कट ऑफ बहुत हाई होगा.
फॉर बीइंग अ ब्लैक कैट आई एम सेइंग। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन नहीं है ना, MDI इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। MDI का एवरेज प्लेसमेंट कितना होगा? 27-28 lakh is the average, so good students will be getting at least 40-50 lakh rupees. It's a private institute, so there is no reservation. You have to know where is reservation. Only in government institute. Is XLRI a government institute? No, it is not. IIM, yes. IITs, yes. FMS Delhi University, so yes. Wherever reservation is there, the GEMS will have the highest cutoff, and then after them, the female engineers, BCom, even BBA, these are very competitive because they want to do MBA. Generally, BTech students, BCom students, and BBA students, they are in great number when we talk about the CAT aspirants, because of which there is a lot of competition and their cutoffs are pretty high. Rest, academic background, there is a sudden fall. There is a sudden fall. It's like you are suddenly going to get into Marina Trench. It's like there is a sharp fall and the percentile falls by a huge margin. 10-10 percentile के fall होते हैं तो स्कोर में और हर चीज़ में बहुत का फ़र्क होता है. So उस समय लेकिन ऐसा नहीं था. उस समय being a BA English and doing law, getting a 99.52, maybe they wouldn't have taken my interview also. But now it is a different thing. Now, having said that, that shouldn't affect your preparation. Whether you are a non-engineer, whether you are a hotel management graduate, whether you are a law aspirant or a BA or sociology, whatever, you have to give your best. I am telling you, if you give your best, you will crack this examination. This is the secret. If you give your best and stop believing, I don't want to make a statement like stop believing, but I am saying don't fall for very easy things like, there are books which will say that, okay, dream, it will happen. No, it's not like that. You guys would have dreamed so much as a kid. I think if your dreams would have come successful, what you're dreaming as a kid, half of you would have been actors in Bollywood. But that didn't happen. It's a fake thing. So nothing like that is going to happen, that if you daydream or dream, it will start coming close to you. The truth is, you give your best. That's the only thing you need to do. You keep giving your best, you will keep getting what you want. You will keep moving forward. It's like how many people, they're just thinking. They're not working, they're just thinking, overthinking. They're not moving. You start moving, you'll see you're moving because you'll be covering some steps and all. You'll be covering some distance. So the second thing is, first is believe in yourself. Second is a good career option. CAT is easy. Why CAT is easy? If you look at the paper, if we can go to the paper, if you look at the paper, I'll show you that you just need a little bit of preparation strategy, little bit of test taking strategy. These two are very important. If you give your time, time means what? Hours. Put in the hours required, you will crack this paper. Maths is very easy. Why maths is easy? No, I don't want you to open this. I want you to open the presentation. Yeah, this one. Yes. This is visible to everyone? Okay. So, पिछले 2-3 साल में मैं क्या देख रहा हूँ? हो सकता है कभी 2 क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, कभी 2 क्वेश्चन घटा देते हैं, ऐसा होता है, but doesn't matter. More or less the paper which is going to come is going to be like this. पीछे कर जाएंगे. हाँ, ये. This is what the paper is. This is last year's paper. बट यू कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर्स पेपर कोई बोलेगा, मैं पिछले बार भी जब सेमिनार ले रहा था, सो कैट का नोटिफिकेशन नहीं निकला था, तो बच्चों ने पूछा था क्या पेपर आएगा, तो मैंने 2 थ्योरीज दी थी, या 24-20-22 आएगा या 26-24-24 ऐसा कुछ आएगा, 1-2 इधर आएगा. सो यू शुडंट वरी अबाउट द पैटर्न. कैट हैज़ नो सरप्राइजेज जनरली. देयर विल बी नो सरप्राइज एलिमेंट. दिस पेपर हैज़ बीन डिवॉइड ऑफ सरप्राइज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. You know what is going to come in the paper. To an extent, you can even predict the breakup. कितना क्या आने वाला है, किस रेंज में आने वाला है. So no surprises are there. That's the first thing. MCQs जिसमें आपको ऑप्शंस देते हैं, नॉन MCQs जो fill in the blank है. तो fill in the blank जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे मुश्किल होता है. क्यों? 2 रीजंस के कारण. पहला रीजन, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं वो लोग करते ही हैं ऑप्शंस का सहारा लेके, जैसे पैरा जंबल्स, पैरा फॉर्मेशन क्वेश्चंस. You look at used to, but now you have to do it without the help of options. So क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है. बट इसका मतलब क्या है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट टाइम का तो वेटेज है ना. कोई भी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम है. कितना टाइम जा रहा है पर क्वेश्चन, पर सेट में. तो टाइम तो जा रहा है. तो नॉन MCQs जब आप प्रिपेयर करोगे तो अभी आप ये टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे कि करना है कि नहीं करना है. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग,
You will prepare for everything. Later when you start taking tests, we'll come to the test taking strategy part. But मैं बोल रहा हूँ आप पेपर को MCQ और नॉन MCQ के नज़रिए से मत देखिए. Just forget about it. Even though one has options, one has no option. सही करोगे तो +3 होता है, गलत करोगे तो -1 होता है. बट नॉन MCQ में सिर्फ +3 या 0 है, -1 नहीं है. बट टाइम का है. सो आप जब टेस्ट दोगे तभी आप ये समझते हो कि किसका क्या अहमियत है, किसको करें किसको नहीं करें. इफ यू कैन मूव अहेड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा आप लोगों को मैंने बहुत बार पहले भी बताया है, अरिथमेटिक एल्जिब्रा कर लिया तो बहुत हद तक आपका परसेंटाइल, एक अच्छा परसेंटाइल क्वांट में, मैथ्स में सिक्योर्ड है. कभी 80% आता है अरिथमेटिक एल्जिब्रा, कभी 90% आ जाता है. मतलब सिर्फ ये 2 टॉपिक से ही 80-90% कैट का पेपर खत्म हो जाता है. सिर्फ ये 2 टॉपिक से, अरिथमेटिक से, एल्जिब्रा से, सिर्फ ये 2 टॉपिक से. अगर आप इसमें भी देखेंगे इस साल भी, तो ये 3 कॉलम्स क्या हैं, ये 3 स्लॉट होते हैं ना, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट, इवनिंग स्लॉट होता है. तो आप देखोगे अरिथमेटिक 9 आया या कभी 8 आ गया. 35% से 45% वेटेज अरिथमेटिक का था, कभी कभी 50% भी हो जाता है. बिकॉज अरिथमेटिक बहुत ही फंडामेंटल है बिजनेस से. परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इक्वेशन, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, टाइम एंड वर्क, ये बहुत ही एलिमेंट्री और इम्पॉर्टेंट बिजनेस मैथ्स है. सो इसलिए इसका वेटेज बहुत रहता है. एल्जिब्रा भी देखेंगे तो एल्जिब्रा सिर्फ एक स्लॉट में कम आ गया. क्यों? क्योंकि उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट दे दिया. जनरली 0 या 1 क्वेश्चन आता है नंबर्स का, 3 क्वेश्चन दे दिया नंबर्स का. तो कभी सरप्राइज में यही हो सकता है कि 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए किसी और टॉपिक से जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे. लेकिन तब भी उससे जो मेजॉरिटी ऑफ द पेपर है उससे फर्क नहीं पड़ता है. इट डजंट मैटर. मतलब किसी में अगर अरिथमेटिक एल्जिब्रा कम भी आएगा ना कभी कैट में, तो भी 75% आ जाएगा, 75% से नीचे नहीं आएगा. तो ये 2 टॉपिक्स पे आपको, और इसमें अगर आप ज्योमेट्री जो कि आप देखेंगे 10 to 20%, कभी 15% आ जाता है, कभी 20% आ जाता है, कभी 10% आ जाता है, तो ±5% तो सब में रहेगा. लेकिन अगर आप ज्योमेट्री का भी ये जो 15% ऑन एन एवरेज ले मिला दे तो 90%, 95% पेपर हो गया है. अरिथमेटिक फर्स्ट, सेकेंड एल्जिब्रा, थर्ड ज्योमेट्री. क्या वेटेज है? 35 से 45%, 25 से 45%, 10 to 20. बाकी टॉपिक्स है ना, या 1 आएंगे या 0 आएंगे. कभी किसी का सरप्राइज हो गया तो 2-3 आ गए. बट दिस इज हाउ द पेपर हैज बीन. अगर मैं सुमित सर को रिक्वेस्ट करूं, लास्ट 3 साल के भी पेपर के मेरे पास ब्रेकअप है, अगर वो हम देखें एक बार तो आपको सेम दिखेगा. यू विल सी एग्जैक्टली द सेम. क्वांट के ब्रेकअप में अगर हम जाए तो, if you look at the quant breakup, yes, see CAT 21 में 12 out of 22 questions were there from arithmetic. algebra 6, यानी कि arithmetic algebra 18 out of 22. मतलब सिर्फ 4 सवाल थे जो कि दूसरे टॉपिक से आए थे, 18 सवाल सिर्फ arithmetic algebra से आए थे. आप कोई भी CAT में जाओ और सिर्फ arithmetic और algebra को जोड़ दो तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्या अहमियत है. आज मैं धीरज सर से बात कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि हाँ यही है, उस समय भी यही था अरिथमेटिक एल्जिब्रा. अरिथमेटिक एल्जिब्रा कैट में अच्छे से कर लो तो तुम्हारा कम से कम 80% सेफ एक हो गया है प्रिपरेशन. सो फर्स्ट नो व्हाट इज कमिंग, हाउ मच इज कमिंग, कैसे पढ़ना है उसको. अच्छा, अगर वापस हम प्रेजेंटेशन में जाएंगे, इफ यू कैन गो बैक टू द, तो ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा कि 34 हो जाएगा बढ़ के. द ट्रेंड इज देयर, अ ट्रेंड विल नॉट चेंज सडनली. So don't expect any major surprise when we are talking about. अच्छा, कितना क्या आएगा वो नहीं पता. टाइम एंड वर्क 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है. आप देखोगे अरे ए में कितना आया, एक स्लॉट में 3 आया, एक में 4 क्वेश्चन आ गए, एक में 3 आ गए. हो सकता है इस साल कैट हो तो उसमें 1 ही आए. मतलब यू कांट गेस. इतना री इंजीनियरिंग करना डेंजरस है. अरिथमेटिक जो है, ये सारे टॉपिक्स ERPV, PPL, SICI, TSD, टाइम एंड वर्क, AMA, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपने इसलिए देखा होगा कि लखनऊ में भी चिराग सर, शशि सर जनरली ये टॉपिक्स लेते हैं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अरिथमेटिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
एल्जिब्रा में भी देयर इज नो ट्रेंड, कभी लॉग आया स्लॉट 1 में, ये क्या 22 की बात हम कर रहे हैं, लॉग एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड स्लॉट में 2 आ गया. So inside algebra also we don't know what will come, what will not come. So you have to study everything from function and graphs to progression and series to indices, logs and surds to special equations to quadratic equations. आपको सब पढ़ना होगा. अरिथमेटिक में भी आपको ERPV, PPL, SICI, TSD, TWA में सारे पढ़ने होंगे. Then you will be sure कि आपका मैथ्स हो जाएगा. स्ट्रैटेजी से चलना पड़ता है. मेरे टाइम में 50 सवाल आते थे मैथ्स में. अगर आप उसमें 18-19 अटेम्प्ट किए, 16-17 राइट किए, आपका 98-99 परसेंटाइल आ गया. स्ट्रैटेजी के साथ चलने से भी बहुत फायदा होता है. अगर मैथ्स आपका स्ट्रेंथ नहीं है तो स्ट्रैटेजी के साथ पढ़िए. अगर मैथ्स आपका स्ट्रेंथ है तो फुल स्कोर लाइए. यू शुड ट्राई टू गेट अ फुल स्कोर. 2 तरह के बच्चे हैं यहाँ पर. एक जिनका मैथ्स एक नेचुरल एडवांटेज है. अब मैं आ रहा हूँ कॉमर्स इन 12th एंड BA ऑनर्स इन कॉलेज एंड डूइंग लॉ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड से, तो मैं बेवकूफ़ हूँगा ना अगर मैं कैट की तैयारी ये सोच के शुरू करूँ कि चलो मैथ्स पहले अपना फुल स्कोर लाऊंगा मैथ्स में. दैट विल बी स्टूपिडिटी. आई विल नो व्हाट इज माय स्ट्रेंथ. नो योर स्ट्रेंथ, नो योर वीकनेसेस. Some students will have a strength in 1 section, some will have in 2, some in 3, some will have 0 strength in any of the sections. So what will be their strategy? You try to get slightly above average in all the 3 sections so that overall it is way above average. Different strategies will work for different people. If you don't strategize in advance, what will be the problem? You won't prepare accordingly. तुम्हारी प्रिपरेशन इधर उधर haywire होगी क्योंकि एक स्ट्रैटेजी के तहत नहीं चल रही है, बस यूं ही चल रही है. इट इज जस्ट गोइंग ऑन लाइक दैट. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट अंडरस्टैंड द पेपर, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस. थिंक क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करूंगा मेरा बेड़ा पार हो जाएगा. इसीलिए सबका स्टडी प्लान अलग होता है ना. कोई एक वन साइज फिट ऑल कैसे हो सकता है. कुछ बच्चे अगर दिन में 7 घंटे पढ़ते हैं तो 5 घंटे मैथ्स पढ़ेंगे, कुछ 6 घंटे पढ़ेंगे, कोई 7 घंटा पढ़ेगा मैथ्स पूरा का पूरा, कोई 3 घंटा पढ़ेगा, कोई 2 ही घंटा पढ़ेगा, कुछ और पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, DILR. द कॉम्बिनेशन विल डिपेंड ऑन हु आर यू. एक दिन में कितना मैथ्स पढ़ना है, DI पढ़ना है, LR पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है हफ्ते में, ये सबका अलग होगा डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर. मैं क्योंकि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 70-80% टाइम जो भी कैट की तैयारी किया मैथ्स ही पढ़ा सिर्फ, बिकॉज आई हैड टू लाइक डू गुड इन इट. आई रिकॉल दैट योर बेसिक्स नीड टू बी सो स्ट्रांग दैट व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर द कोचिंग क्लास, जैसे सर डिक्टेट करते थे क्वेश्चंस, आई हैड माई आंसर्स. तब यू नीड टू बी वेरी शार्प. जो इनिशियल क्लासेस जो ही होती हैं आप लोग की ERPV 1, 2, 3 और ये PPL 1, 2, 3 ये जो चल रहा है, ऐसा नहीं कि वहां जा रहे मूवी देखने पहली बार. यू हैव टू स्टडी इन एडवांस. आपको पढ़ के जाना है क्लास में और फिर वहां पर एक्स्ट्रा सीखना है क्या, देन ओनली आप कर पाएंगे. देन ओनली यू नीड टू बी कमिटेड. आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द नॉन मैथ्स गाय हियर. दे हैव टू बी कमिटेड टू दिस. मतलब आपको कमिटमेंट करना होगा कि मैथ्स इंप्रूव करना है और उसमें भी कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे पहले फोकस करें ताकि मार्क्स उठाएं उससे. एक स्टूडेंट है PNC पढ़ रहा है 15 दिन से, एक स्टूडेंट है अरिथमेटिक पढ़ रहा है 15 दिन से. वो जो 15 दिनों से अरिथमेटिक पढ़ रहा है उसने बहुत उठा लिए मार्क्स कैट के वो 15 दिनों में, एक्चुअल में जब कैट एग्जामिनेशन होगा. यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, यू हैव टू नो योर सेल्फ. प्लस देयर बी सम स्टूडेंट्स हु विल गेट फुल स्कोर. फुल स्कोर आता है. बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिनको मैंने हेल्प किया है या मेंटर किया है, उनको फुल स्कोर आया है. जितने मार्क्स, जैसे 24 सवाल आए मैथ्स में या 22 आए या 26 आए पिछले 2-3 सालों में, सबके सब कर दिए, फुल स्कोर आ गया. बिकॉज इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ डूएबल. बट कम स्कोर पे भी परसेंटाइल बहुत हैवी बन रहा था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट अंडरस्टैंड द पेपर. ये पेपर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट स्लाइड, इफ यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब बात करते हैं इसके बाद वाले स्लाइड पे. यस, बहुत प्रिडिक्टेबल DILR आता है. गेम से आएगा, रूट्स नेटवर्क से आएगा. DILR का सिलेबस क्या है? टेबल्स, बार्स, लाइन, पाई, केसलेट, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन, बाइनरी लॉजिक, कंपैरिजन, वेन डायग्राम्स,
गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, रूट्स एंड नेटवर्क, DI रीजनिंग, मैक्सिमा मिनिमा, क्वांट बेस्ड रीजनिंग, ये है पूरा DILR। उससे ही आएगा, कभी भी बाहर से नहीं आएगा। इट विल नेवर कम फ्रॉम आउटसाइड। आप देखो लास्ट ईयर भी यही हुआ। ये 3 स्लॉट्स है, 3 कॉलम। गेम्स 2 स्लॉट में दिखाई दिए, रूट्स 2 स्लॉट में दिखाई दिए, QBR इज क्वांट बेस्ड रीजनिंग 2 स्लॉट में दिखाई दिए, सिंपल DI स्कैटर चार्ट, बार ग्राफ 2 बार दिखाई दिया, वेन डायग्राम 2 बार दिखाई दिया। प्रिडिक्टेबल है, इट्स प्रिडिक्टेबल। सुमित सर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो लास्ट 3 साल के भी DILR दिखाएंगे तुम्हें सेम ट्रेंड दिखेगा, देयर विल बी नथिंग डिफरेंट, कुछ भी। और ये जो DILR है यही कैट में आता है। और एक होता है नॉन कैट DILR, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, सिंबल्स, नंबर लेटर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिडक्शंस जिसको डिडक्टिव्स, कनेक्टिव्स, सिलॉजिज्म्स भी कहते हैं। बहुत सारे इस तरह के जो टॉपिक होते हैं, क्यूब्स, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ये कैट में नहीं आते हैं। तब 0 क्वेश्चन है, आज तक नहीं आए और कभी आएंगे भी नहीं। दे डोंट कम इन कैट। जो मैंने आप लोग को डिस्कस किया, जो आपके क्लास लगते हैं, सिर्फ वही आता है कैट में। सो आप देखिएगा लास्ट ईयर्स के भी कैट 21 में देखिए बार ग्राफ आ गया, और ये सब भी वैसे ही देखिए स्लॉट 2 में भी बार ग्राफ है, गेम्स टूर्नामेंट्स है, बार ग्राफ है। ये नाम लिखे हुए हैं जो टॉपिक के पिज्जा रिलेटेड आए, बट एक्चुअली में वही सब डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शंस। देयर इज नो सरप्राइज। DILR में देयर विल बी नो सरप्राइज, यू विल नो व्हाट द पेपर इज लाइक। कोई भी सरप्राइज नहीं होगा। इंग्लिश में एक बार जाएंगे, इफ यू गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। अच्छा, DILR का जो तैयारी है आपको यही सोच के करना है कि पहले तो बेसिक्स पढ़ना है, बट कैट में जो DILR आता है और जो बाकी MBA एग्जाम्स में आता है उसमें बहुत फर्क है। बाकी एग्जाम्स में जो DILR आता है वो आसान DILR होता है, वो स्कोरिंग होता है, उस पर आप स्कोर कर सकते हैं। जो कैट में DILR आता है, क्योंकि वो मुश्किल होता है, उस पर आप उतना स्कोर नहीं कर सकते, इसलिए कम स्कोर में भी परसेंटाइल बहुत हैवी बनती है। मतलब आप सोचिए 4 सेट आए DILR में, 4 सेट आए 4-4 सवाल के, या 5 सवाल के 4 आए, 20 सवाल आए, तो वो जो DILR सेट्स होंगे सबसे पहले बहुत आसान नहीं होंगे। प्लस अगर आप वो 4 में 2 भी अच्छे से कर लिए, आपका काम हो गया। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DILR एंड व्हेन यू आर टेकिंग सेक्शनल टेस्ट ऑफ DILR, और व्हेन यू आर सॉल्विंग आवर मटेरियल फॉर DILR, and if you are not able to solve it, please do not get frustrated, because a big part of the preparation for DILR is solution. मतलब ये तीनों टॉपिक में एक ऐसा टॉपिक है DILR जिसमें आपको मैक्सिमम टाइम सॉल्यूशन से पढ़ना होगा। आप पहले सेट क्रैक करने की, मैं अच्छे लेवल के सेट्स की बात कर रहा हूं, आप पहले सेट देखोगे, आपसे होगा नहीं, फिर आप जाओ घूमो। हमेशा कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी सेट को 2 बार ट्राई करना है, फिर आप वापस आओगे, ट्राई करोगे, हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो फिर आप सोल्यूशन समझते हो। इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी वेरी कॉमन। अभी आप में से 99% लोग का ऐसा लेवल होगा कि अगर आप लोग को हम लोग ऑल इंडिया मॉक कैट्स कराएं, तो हो सकता है सभी DILR के सेट्स के लिए आपको सोल्यूशन देखना पड़े, एक भी नहीं लगे। तो इसकी तैयारी अलग है, सोच अलग है। नहीं तो क्या है, बच्चा जो है गलत फहमी में रहेगा कि अरे सर मेरे से हो नहीं रहा है, लीव कैट। बट इसमें तो बहुत कम में ही परसेंटाइल बहुत बड़ा बन जा रहा है। परसेंटाइल इज बेसिकली योर रैंक, सो एट अ लो स्कोर यू गेट अ वेरी हाई रैंक इन DILR. We'll discuss about what is the low score that I am talking about here. English, ये अगर आप पैसेजेस को पढ़ेंगे, ये इस साल जो पिछले साल जो कैट का पेपर था, कैट 22 का, उसके टॉपिक्स हैं। आप कोई भी साल के कैट के RC के पैसेजेस के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ आएगा, यू नीड टू नो द लैंग्वेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। प्लस this sort of language you don't find in novels or entertainment kind of weeklies and magazines and all. These are more or less academic kind of articles, so you need to study from the right sources. आपको सही sources से पढ़ना होगा, तभी आपका RC सही होगा। मतलब जैसे पैसेज आते हैं वैसे ही पैसेजेस अगर आप करते आ रहे हैं तो आपका पैसेज में अच्छा स्कोर आएगा। ओरिएंटलिज्म एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियाज पास्ट, ये आप थोड़ी अपने डेली रीडिंग में कहीं पाएंगे। ये सब ये आपको टॉपिक देख के नहीं लग रहा है, देख के किसी ने लिखा है। दीज आर एकेडमिक राइटअप्स, दीज आर एसेज, दीज आर आर्टिकल्स, दीज आर वाइट पेपर्स। सो यू नीड टू गो वेयर दे आर पिक्ड फ्रॉम।
Sources are multiple. One very good source is doing the official guides of GRE and GMAT, just the RC chapter, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन चैप्टर. आप लोगों को मैं एक लिंक भेजूंगा, आज बहुत चीज़ें मैं टेलीग्राम में भेजूंगा ग्रुप में, तो ये लिंक भी भेजूंगा आप लोग को. इस लिंक में आपको GRE का ऑफिशियल गाइड है, GMAT का ऑफिशियल गाइड है, GRE का ऑफिशियल वर्बल रीजनिंग गाइड है, मैनहट्टन का RC है, GMAT का. तो GRE GMAT से अगर आप RC पढ़ते हैं तो कम से कम दो चीज़ें अच्छी हो रही है. एक, आपको सही पैसेजेस मिल रहे हैं जो आता है कैट में. दूसरा, CAT is inspired to an extent, it's preparing you for CAT, because that's where the inspiration is coming from for CAT. दूसरा, अपना मटेरियल तो सॉल्व करेंगे ही, we'll discuss in detail, but I'm just first discussing the paper so that you understand the paper. पेपर नहीं समझोगे, पेपर के अंदर क्या आता है, सेक्शन के अंदर क्या आता है, टॉपिक का क्या डिवीजन है, जब तक ये समझोगे नहीं तुम एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नहीं बना पाओगे. It's not possible because you won't know the paper. VA एक नया एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया था, तो कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो एक दो क्वेश्चन का होगा, बट वो इंग्लिश लैंग्वेज से ही रिलेटेड होगा. पहले ऑड वन आउट आता था, पिछले साल आया सेंटेंस प्लेसमेंट. एक पैराग्राफ दिया हुआ है और एक सेंटेंस दिया है, ये सेंटेंस कहाँ फिट होगा बताइए पैराग्राफ में. पैराग्राफ में नंबर न्यूमेरिकल दिए 1 2 3 4, ये कहाँ फिट होता है. अगेन रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग. अगर आप देखेंगे पैरा फॉर्मेशन हो, पैरा समरी हो या सेंटेंस प्लेसमेंट हो, ये एक ही चीज़ है एक्चुअली में. इट्स द सेम थिंग. इट इज टेस्टिंग वेदर यू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज और नॉट. फॉर दैट योर वोकैबुलरी नीड्स टू बी गुड, your reading needs to be good, but the vocabulary building and the reading has to be from relevant sources. relevant sources का क्या मतलब हुआ? जहाँ से आता है पेपर में, पता चला आप कुछ और ही पढ़ रहे हैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, बट उस तरह का इंग्लिश पूछा ही नहीं जा रहा है. इट इज़ नॉट बीइंग आस्क्ड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप कहाँ से पढ़ते हो. we'll discuss about the preparation strategy also, but first I just want to expose the paper to you people. इस बार भी ऐसे ही रहेगा, पेपर इज गोइंग टू बी द सेम. इफ सुमित वी कैन गो टू लास्ट 3 years, आप लोग के साथ में सब शेयर करूंगा, डोंट वरी, आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग. बुक्स हो जिनके बारे में बात कर रहा हूं मैं, या ये ब्रेकअप्स हो टॉपिक वाइज, विल शेयर इट विथ यू पीपल. ये देखिए 21 में क्या क्या आया था इन टर्म्स ऑफ द पैसेज का हेडिंग. ये नॉर्मल हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डोंट रीड दीज काइंड ऑफ थिंग्स नॉर्मली. नीचे अगर वी कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन, जस्ट होल्ड इट देयर. I see a lot of history, science, sociology, political science, biotech, a lot of topic comes. So you need to go to the sources basically from where this is being asked. We'll share the sources, but I'm just telling you how to go about it. English part. If you can go back to the presentation. कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हो, कुछ नहीं समझ आ रहा है उसमें क्या बोला सर एक बार रिपीट कीजिए, जो भी है यू आर फ्री टू आस्क. आगे बढ़ेंगे इससे. द ब्रेकअप विल रिमेन द सेम. पिछले बहुत साल से आप देख रहे होंगे VA RC ऐसा रहता है, VA इतना रहेगा, RC इतना रहेगा, फिर से VA इतना मतलब इतना रहेगा, RC इतना रहेगा. बट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, VA भी और RC भी. कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि सर सिर्फ RC कर ले, या सर सिर्फ VA कर ले, या मुझे VA पसंद है RC पसंद नहीं है. इट्स अ लैंग्वेज, सो यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट योर एक्यूरेसी. मैथ्स यू कैन बी 100% श्योर अबाउट योर एक्यूरेसी बिकॉज यू हैव स्टडीड द टाइम एंड वर्क से सवाल आया है, पहले भी किया हुआ है वो सवाल, आंसर भी आ गया, सब आ गया, टिक करो बढ़ो. इंग्लिश में यू कैन नॉट बी श्योर. वो ऑथर क्या सोच रहा है या जो पेपर सेटर क्या सोच रहा हो सकता है आपके सोचने में थोड़ा फर्क हो गया कुछ सवालों में. तो इंग्लिश में कभी 70% एक्यूरेसी, कभी 60%, कभी 80%, कभी 90%. मतलब शुरुआत में आपको काफ़ी टाइम लगेगा कि इंग्लिश में जो आपका बैंड है एक्यूरेसी का, उस बैंड को छोटा किया जाए, काफ़ी टाइम लगेगा बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज. सो जब ऐसे भी वी आर नॉट श्योर अबाउट द एक्यूरेसी, तो आप ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते कि सिर्फ VA करें या RC करें, आपको दोनों में अच्छे से करना होगा. इसके लिए वी विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी एंड ऑल. कोर्स की बात हम करते हैं थोड़ा. मैथ्स का कोर्स बहुत वास्ट है. क्यों बहुत वास्ट है? क्योंकि हम लोग सिर्फ कैट पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं पढ़ा सकते हैं. आप लोग ZAD भी लिखेंगे, कुछ बच्चे NMAT भी लिखेंगे, SNAP भी लिखेंगे, IFT भी लिखेंगे, CMAT भी लिखेंगे. तो इसलिए मैथ्स की हम जब बात करते हैं तो पूरे मैथ्स को अच्छे से हम लोग कवर कराते हैं, लाइक इन द मोस्ट प्रॉपर वे. सो आप देखिए कितनी क्लासेस होती हैं.
ये हम लोग क्लासेस की बात कर रहे हैं, द कोर्स स्ट्रक्चर, द क्लास शेड्यूल. व्हाई सम पीपल माइट बी थिंकिंग मैथ्स की इतनी क्लासेस क्यों होती है? बिकॉज 84 सेशंस आर लाइंड अप. अरिथमेटिक में ही देखिए 24 क्लासेस. लुक एट द ब्रेकअप ऑफ ERP, VP, PL, SICI, TSD, टाइम एंड वर्क, AMA, एंड द सेम थिंग शुड रिफ्लेक्ट इन योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. यू नीड टू स्टडी अ लॉट ऑफ मैथ्स. व्हाई? बिकॉज द कोर्स इज स्लाइटली, मतलब बहुत पढ़ने को है, इसीलिए पढ़ना है शुरुआत से ही. आप जैसे जैसे एग्जाम के पास पहुंचते हैं, द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी विल ड्रास्टिकली रिड्यूस. लास्ट के 2 महीने क्या शेड्यूल होना चाहिए? एक टेस्ट ले लिया 2 घंटे का, एनालाइज कर लिया 1-1.5 घंटे में खत्म. 3-3.5 घंटे की पढ़ाई है पूरे दिन में, पूरे अक्टूबर, पूरे नवंबर. अभी ज़्यादा पढ़ना है, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है आपकी पढ़ाई बहुत कम होनी चाहिए. दैट्स द वे टू इंश्योर सक्सेस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. बहुत बच्चों का उल्टा होता है फनल. पहले कम पढ़ेंगे, जैसे से एग्जाम आएगा. ये स्कूल कॉलेज का एग्जाम नहीं है. दिस इज अ एग्जाम विच टेस्ट योर कॉन्फिडेंस. इन स्कूल दे आर टेस्टिंग योर मगिंग एबिलिटी. यू नो द आंसर टू द क्वेश्चन, मतलब आपको पहले ही पता है ना आंसर्स क्या है, क्वेश्चन क्या है. कुछ हवा से तो नहीं आने वाला है. यहाँ ऐसा कोई पर्चा तो नहीं बटने वाला है कि आपको पता है कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आने वाला है पेपर में. अलजेब्रा की हम बात करेंगे तो अलजेब्रा 1 महीने क्लास चलती है, मतलब पूरे महीने अलजेब्रा ही होगा सिर्फ. 80% of you to be done with your course when the CAT notification is out. CAT notification comes out in mid of August. I will try my level best to finish your course. Those who are new students here, I'll finish your course by September end. In October and November, nobody should be studying. If you are preparing in October and November, that means you have missed CAT that year. That means it's late now. Because that's the time to take tests and build test taking strategy. Test taking strategy build up takes minimum of 1.5 months. मतलब आप 1.5 महीने जब टेस्ट लिखोगे तब जाके आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी बन जाएगी. सो वो अपने आप पे ही बहुत टाइम खाता है. तो आप अक्टूबर में, नवंबर में नहीं सोच सकते हो कि पढ़ रहे हैं और लॉट लगा रहे हैं और एडवांस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं. यू कांट डू दैट. इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. इंग्लिश का बहुत छोटा कोर्स होता है. आरसी के 8 हैंडआउट्स हैं, उनकी 16 क्लासेस होती है. VA के 5 हैंडआउट्स होते हैं, VA 1, 2, 3, 4, 5 डीलिंग विद द डिफरेंट टॉपिक्स. उनकी 10 क्लासेस होती है, जस्ट 26 क्लासेस होती है. सोचिए इंग्लिश की 26 क्लासेस होती है, मैथ्स की 84 क्लासेस होती है. दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस. प्लस इंग्लिश में हायर हैंडआउट्स हम लोग कराते हैं, उसमें 6 + 6 12 क्लासेस लगता है. बट मैथ्स इज टू मच ऑफ स्टडीज. सो वेदर यू आर गुड एट मैथ्स और बैड, यू नीड टू स्टडी अ लॉट ऑफ मैथ्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट ईयर कैट में मैथ्स में 22 क्वेश्चंस आए थे. गुरप्रीत, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू अटेम्प्ट आउट ऑफ 22? 18 अटेम्प्ट किया तुमने आउट ऑफ 22. सही कितने हुए? 17 सही हुए. ही अटेम्प्टेड 18 आउट ऑफ 22, 17 सही हुए. क्यों? मैथ्स यू नो, मतलब गेस क्या है? व्हाट इज अ गेस? देयर इज नो गेस. इधर यू नो और यू डोंट नो. इंग्लिश में देयर विल बी गेस. इट्स अ लैंग्वेज. क्या परसेंटाइल बना इसके कारण मैथ्स में? 99.95. 18, 17 करेक्ट, 99.95. अब वो जो मैथ्स का स्कोर है और इंग्लिश का स्कोर है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है. DILR में उतना स्कोर नहीं होता है बच्चों का. तो आपको ये भी जानना है दैट इफ A + B + C, 3 सेक्शंस हैं, A B C, A + B + C is equal to D. D is your total score. इसमें B का कंट्रीब्यूशन कम होता है, A और C का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. और मैथ्स इज डिपेंडेबल, इट्स ईजी, डोंट हेट इट, इट्स नॉट अ पर्सन. कुछ बच्चे बोलते हैं आई हेट मैथ्स, आई डोंट लाइक मैथ्स. ये आदमी थोड़ी इंसान है, लाइक करेंगे, हेट करेंगे, या खाना है पसंद है. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू गेट अहेड. मतलब आपको A से C पहुंचना है तो B नहीं क्रॉस करोगे तो C कैसे पहुंचोगे? इट्स समथिंग लाइक दैट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. इफ यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये देखिए, यही सब मैं टॉपिक्स आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा था लॉजिकल रीजनिंग में. ये टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं. पैनिक मत करिए. कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर आपने ब्लड रिलेशन नहीं कराया. तो मैम ब्लड रिलेशन CMAT में आएगा, उसका एग्जाम अगले साल होगा, वो भी पता नहीं होता है, कभी नहीं होता है, मार्च में होता है. डोंट पैनिक. फर्स्ट वी हैव टू टारगेट CAT एग्जामिनेशन, प्रिपेयर यू फॉर CAT एग्जामिनेशन. CAT एग्जामिनेशन के बाद सारे OMETs होते हैं, उसकी भी तैयारी होगी, लेकिन दिस इज मोर इंपॉर्टेंट द CAT. वाई? टॉप 6 IIMs CAT लेते हैं, FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी CAT लेता है, SP जैन मुंबई CAT लेता है, IIT बॉम्बे CAT लेता है, IIT दिल्ली CAT लेता है, MDI गुड़गांव CAT लेता है.
90% of your top 10 institutes, top 20 institutes, they all take the CAT score only. So अगर CAT हो गया तो आपका मतलब बेड़ा पार हो गया. कुछ बेचारे बच्चे कैट में अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनकी किस्मत खराब हो रही होती है, लेकिन फिर वो जैट में अच्छा कर देते हैं तो उनकी किस्मत वापस सही हो जाती है, या IFT में अच्छा कर देते हैं. सो बट कैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये टॉपिक्स हैं जो आते हैं, ये मुश्किल टॉपिक्स नहीं है. These are not games, tournaments. जब आपको, so I will also take your classes this year. Once you are done with your basic DILR, these are not tough topics. If you are finding some topic to be difficult because maybe some fundamental is missing, it can be a fundamental related to simple equation or ratio proportion variation, because of which you are not able to do a games and tournaments का set because some link is missing. That's the reason, do not be in a hurry. मैं पर्सनली बच्चों को बोलता हूँ कि जब तक आपका अरिथमेटिक स्ट्रांग नहीं होगा, आपका DILR स्ट्रांग नहीं होगा. मतलब पहले अरिथमेटिक इंप्रूव करो, थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इंप्रूव करो, फिर DILR इंप्रूव होगा. क्यों? DILR में सेट्स हैं, तो RC की तरह सेट्स हैं, मतलब आपको पढ़ना है, आपका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होना चाहिए. सेकेंड, you need to be good with arithmetic and the basic principle of mathematics so that you can numerically solve it. पढ़ा इंग्लिश लैंग्वेज में, RC आ गया, सॉल्व किया न्यूमेरिकली, तो बेसिक अरिथमेटिक और मैथ्स के प्रिंसिपल्स आ गए, नंबर्स के प्रिंसिपल्स आ गए. सो दैट्स द रीजन DILR इज टू बी हैंडल्ड. ऑल 3 सेक्शंस आर यूनिक, दे हैव टू बी हैंडल्ड इन अ डिफरेंट वे. इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Score versus percentile. This is going to shock you. If Sumit sir can take us to Time for Education website, maybe you guys can see then what score पे क्या percentile बनता है या क्या predict होता है. This can help you a lot. Sumit sir is opening. So basically the idea is a lot of us have these misconceptions about इतने score पे ये बनेगा, इतने score पे IM मिलेगा. ऐसा नहीं है. Maybe some will be aware, some will not be aware. अगर ये नहीं हो रहा है, we can move this, मतलब we can go ahead with the slide. I can show it to them later if this is not happening. So you just need to open it in a different, like, or you can just log into T4E. Are you able to log into T4E? Just write timeforeducation.com. Come out of the presentation, because it's important. It's very important to know everything before you start preparing like crazy. ये तो बस दिखा रहा है एक स्लाइड की कैट में कोई सरप्राइज नहीं है. 40 मिनट 3 सेक्शन है, हर सेक्शन के लिए 40 मिनट आपको मिलता है. वो 40 मिनट उसी सेक्शन के लिए आप कहीं दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते हैं. आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी दिया जाता है. ये ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर और अरिथमेटिक को इतना वेटेज देना हाल फिलहाल में ही बहुत बढ़ा है. क्यों? ताकि जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको मैथ्स में स्कोर कर पाएँ. So they don't have the calculation का headache, or they don't have to study higher maths which was generally taught in 11th and 12th. Non-MCQs में no negative marking is there. Sumit sir is trying to basically log in. Leave that. कोई doubt है अभी तक? Any doubt anyone is having before we move ahead? I think we have a 20-30 second time to log into it. Till that time, yes, he has been able to do. So तुम्हें भी कुछ नहीं करना है, टेस्ट एनालिसिस में जाओ. I'll keep guiding you. Go to CAT MBA. So ये टेस्ट एनालिसिस पेज में ना सबसे अच्छा है, सारे एग्जाम्स के हर साल का पूरा एनालिसिस दिया रहता है. So everyone should keep looking into it. You can select any exam. So CAT हमने सेलेक्ट किया, लास्ट ईयर का CAT 22 सेलेक्ट किया. Just hold on, wait. Then you go to the CAT written analysis part. Sumit, CAT written analysis. Yes, and then you go to the cutoff analysis. And yes, we are there. नीचे जाएंगे, एक बार नीचे जाएंगे. पहले मैथ्स का परसेंटाइल देखते हैं. जस्ट होल्ड ऑन. स्कोर है, स्कोर को कैसे एनालाइज करेंगे? बाय 3 करके. क्योंकि करेक्ट आंसर करो, किसी ने 5 सही किया पेपर में तो उसको 15 स्कोर आएगा सेक्शन में. किसी ने 10 सही किया उसको 30 आएगा. ऑफ कोर्स एग्जैक्ट नहीं होगा हर कुछ, बिकॉज नेगेटिव भी हो रहा है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपल वे. फर्स्ट क्वांट का देखो परसेंटाइल. किसी बच्चे ने अगर 10-12 सही कर दिया क्वांट में 24 सवालों में, उसका 99 परसेंटाइल पार हो गया. इज दैट अ बिग थिंग? 24, अगर मानो 22 क्वेश्चंस आर देयर, गेटिंग 10 करेक्ट, 12 करेक्ट, इज इट दैट टफ? इट इज नॉट टफ एट ऑल. इट्स वेरी वेरी इजी. And a lot of students, what they keep doing, they live in anxiety, they live in fear of maths. They think
बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा आपको मैथ्स में, सुपर होना पड़ेगा, तब जाके 99 परसेंटाइल बनेगा मैथ्स में। ऐसा नहीं है, इट्स अ फेक थिंग, इट्स अ मिथ। आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई न्यू दीज थिंग्स बिकॉज आई हैड रिसर्च्ड माई सेल्फ। दैट्स द रीजन मुझे पता था, इवन दो मैं मैथ्स नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ, तो चलो 17 भी सही आ गया, 50 में 99 परसेंटाइल बन गया मेरा। So that's how people have to prepare for CAT examination. तुम ये देखो 95 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, वो 85 परसेंटाइल देखो। 5 सही करोगे तो क्या स्कोर बनेगा? 15 बनेगा। 14 पे 85 परसेंटाइल है कॉन्ट में, 14 के स्कोर पे। सो इट्स नॉट टफ। इसको अच्छे से देखो, इसको अपने दिमाग में सेट करो, ताकि पहले ये समझो कि कैट इतना मुश्किल नहीं है। परसेंटाइल को परसेंटेज से नहीं कभी कंपेयर करो। कोई बोलता है मुझे 99 परसेंटाइल आया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई सुपर जीनियस है, बिकॉज उस पर इतना भी बहुत हैवी स्कोर नहीं बना है। द स्कोर इज ओके ओके, ऑर्डिनरी, वेरी डुएबल काइंड ऑफ अ स्कोर। DILR देखो, 8 सही करोगे तो 24 बनेगा पेपर में। 20 सवाल आए मानो DILR के, तुमने उतना कर दिया, 50% भी नहीं किया पेपर का, 99 परसेंटाइल पार हो गया। 4 सवाल सही किए DILR में, किसी ने 4 सवाल सही किया तो 3 into 4 12 बना उसका स्कोर। 12 के स्कोर पे 85 परसेंटाइल पार हो गया। कैट में IIMs का कट ऑफ क्या होता है? 80 to 80, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 80 to 85 परसेंटाइल चाहिए सेक्शनल कट ऑफ। तो मानिए सोचिए 20 सवाल में कोई 4 सवाल कर रहा है, उसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गया। नो व्हाट द पेपर एंड द परसेंटाइल। ओवरऑल देखिए, ये आपको और शॉक करेगा। ओवरऑल 66 क्वेश्चंस आए मानिए, 66 क्वेश्चंस। किसी बच्चे ने 30 सही किया। 66 क्वेश्चंस आए कैट में, कैट 22 में 66 क्वेश्चंस आए थे। 66 में अगर बहुत मेहनत करेगा कोई तो 30 सवाल तो सही कर देगा। 30 सवाल में उसका स्कोर 90 होता है। 90 हुआ, 85 पे ही 99 परसेंटाइल पार हो गया था। देखिए 85, 84, 88 स्कोर पे 99 परसेंटाइल पार हो गया। यू आर थ्रू। ये तो मैं बात कर रहा हूँ अगर आपको ब्लैक कैट बनना है, ऐसा नहीं, और भी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ना। हो सकता है बोले नहीं सर आप बहुत लालची हैं, आपको सिर्फ टॉप इंस्टीट्यूट और ये सिर्फ मिलियंस और बिलियंस दिखता है, मुझे नॉर्मल इंस्टीट्यूट भी चलेगा जहाँ पर 16-17 लाख का पैकेज भी होता है, 15 लाख का भी पैकेज होता है। वो तो आपको 95 परसेंटाइल पे भी आराम से मिल जाएगा, यानी कि 64 का क्या मतलब हुआ? किसी ने 20-21 सवाल सही किए पूरे पेपर में, 66 में उसका हो गया, he crosses 95 percentile. Know the paper. सोचो किसी ने पूरे पेपर में 66 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 10 ही सवाल सही किए, जो कि बहुत खराब होता है। कोई इतना पढ़ा, इतने आसान टॉपिक्स आए जिसमें अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, नॉर्मल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो पढ़ के गए हो बार वही बार आ रहा है, गेम्स आ रहा है, रूट्स आ रहा है, लेकिन तब भी तुम निकम्मे हो, तुमने सिर्फ 10 ही सवाल सही किए पूरे पेपर में। 2 घंटे बैठ के 10 सवाल निकाले, वेरी बैड परफॉर्मेंस। स्कोर कितना बना? 30 के स्कोर पे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा क्या परसेंटाइल होता? मुझे लगता है 30 के स्कोर पे तुम्हारा परसेंटाइल 88-90 परसेंटाइल, मतलब तुम सोचो तुम 90 परसेंटाइल पे पहुंच चुके हो। यू हैव रीच्ड 90 परसेंटाइल, 88-90 परसेंटाइल। ट्राई अंडरस्टैंडिंग द स्कोर परसेंटाइल करस्पॉन्डेंस सो दैट यू स्टॉप बीइंग स्कैर्ड। बी स्कैर्ड फॉर द राइट रीजन कि अरे यार कुछ कर नहीं पाए लाइफ में, कुछ करना है, सपने देखता हूं, कब तक चलेगा ऐसे ही झूठे सपने देखना। गेट स्कैर्ड, ताकि मजे कर रहे हो अचानक से डर लगा, गिल्टी लगा कि नहीं यार चलो पढ़ते हैं, कब तक क्या होगा, क्या आगे क्या होगा, करोड़ों रुपए कैसे आएंगे, टॉप MBA कैसे करेंगे। दैट फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्राइव यू। गलत फियर क्या है? हो ही नहीं सकता है, बहुत टफ है, बहुत स्कोर लाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आसान एग्जाम है, बहुत सीटें, कम बच्चे पेपर लिखते हैं विज़ा विज़ द गवर्नमेंट जॉब्स। करोड़ों बच्चे लिख रहे हैं, लाखों बच्चे पेपर लिख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, कुछ थोड़े से ओपनिंग है, पैसे मतलब 1/10 क्या, मतलब मुझे लगता है 1/100th मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू ये जो फ्रेश आप लोग की तरफ बच्चे जाओगे टॉप MBA इंस्टीट्यूट में और 50 लाख 1 करोड़ ये सब कमा रहे होगे शुरुआत में ही, उनकी जो रिटायरमेंट सैलरी होती है उतनी नहीं होती है। बट स्टिल वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर ऑफ द एग्जामिनेशन। लोगों को पता नहीं रहता, दे थिंक इट्स एन एलिटिस्ट एग्जामिनेशन। मतलब हो सकता है आपको एक लेवल का होना चाहिए तभी आप ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। दिस इज एन ईजी टेस्ट,
It's easy to get into the top business schools. You need to commit, you need to understand the paper, build preparation strategy, build test taking strategy, believe in yourself, follow a timetable. Come what may, don't break the chain of events. मतलब कहीं भी compromise मत करो, एक दिन भी compromise नहीं करो. Very very important to stay focused. Only एक साल तो आदमी पढ़ ले काफ़ी है. थोड़ी ऐसा है कि लाइफ टाइम पढ़ना है. You don't have to study लाइफ टाइम. MBA इंस्टीट्यूट भी जब ज्वाइन करोगे तो पहले 2 सेमेस्टर में बहुत पढ़ना पड़ता है. You have to study a lot. In your second year there is no study. It's over, finish. You are free. Then throughout your life don't study. But this time is important to study. Even for those who have never studied. Because I can relate to them. Because I didn't study before CAT examination at all. I got a 60% in 10th, 57% in 12th. I was a cricketer, was playing district cricket. So I was not going to school. But when I prepared for CAT, what it has to do with not preparing earlier. साइकिल चलाना नहीं आता है, किसी भैया को बोल दिया, 1-2 दिन में साइकिल चलाना सिखा दिया, पहले नहीं आता तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है. It's as simple as that. टाइम एंड वर्क नहीं आता है, कुछ क्लासेस की, थोड़ा पढ़ा, 2-4 दिन, 5-6 दिन बहुत मेहनत किया, टाइम एंड वर्क आ गया. It's the same thing. बदले में क्या मिल रहा है? You get a big job, you get like a good institute, a brand name, secured future, launch pad. If you want to do something big, it will give you the opportunity. Some people want to stay in India, some don't want to stay in India, they want to go abroad. You can go abroad, you can settle there. There also you'll get a big job. You won't get a small job that you have to be a struggler. A lot of doors will open, a lot of doors of opportunities will open. And this facility is not there across the globe. अगर आप ये सोचते हैं कि हार्वर्ड जाएंगे, वॉटन जाएंगे, स्टैनफोर्ड जाएंगे या फिर लंदन बिजनेस स्कूल जाएंगे तो आपको बड़े प्लेसमेंट मिलेंगे, नहीं, वहाँ सैलरी नहीं लगती, प्लेसमेंट नहीं होता है. 99% of them are company sponsored. Abroad MBA has a very different meaning. It's for those people who have a lot of experience and the company is sending them. Very few people are doing it on their own, funding it on their own. Most of them are entrepreneurs. They are already doing businesses and they want to expand, they want to understand the market. They're from some other country. So abroad MBA is different. Indian MBA is a unique MBA where you crack CAT, you go there, and before MBA is even in second year, you are placed in your summers. If you go back to the presentation. Some important things we are seeing related to CAT, which is very important. Differential marking नहीं होती, इसका मतलब कि सब क्वेश्चंस के एक ही मार्क होते हैं. ये नहीं कि कोई 2 मार्क का है, कोई 3 मार्क का है, कोई आधे मार्क का है, कोई 1 मार्क का है. सब एक ही, मतलब फर्क नहीं पड़ता आप किसको चुनो, किसको हटाओ. सब एक जैसे हैं. आपको क्या करना है? पहले इजी क्वेश्चंस पकड़ना है, फिर मीडियम. जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप इवन मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करने की पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय भेदभाव नहीं करना है. अगर आप एवरेजेस, मिक्सचर्स, एलिगेशन की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे आसान सवाल और सबसे भयानक मुश्किल सवाल, ये सब आपको टैकल करना आना चाहिए. लेकिन जब आप पेपर में लिखेंगे तो आप अपना प्रैक्टिकल माइंड भी यूज़ करेंगे. ये वैसे ही आप गाड़ी चला रहे हो, 300 के स्पीड में एक गड्ढा है और यहाँ पर गड्ढा नहीं है, आप गड्ढे में क्यों जाना चाहते हो? गड्ढे को अवॉइड करो, नॉर्मल रोड में जाओ. तो व्हेन यू टेक द पेपर, यू फर्स्ट सॉल्व द इजी क्वेश्चंस, देन द मीडियम लेवल डिफिकल्टी क्वेश्चंस. उसके बाद टाइम ही नहीं बचता है, सो यू आर सेव्ड फ्रॉम wasting time on difficult questions. So we'll discuss all this later. Let's go to the next slide. Okay. This is again related to test taking strategy, which we will discuss in some time. Let's go to the next slide. This is again related to test taking strategy, we will discuss in some time. उसका एक अलग हम लोग test taking strategy, ये भी हम लोग बाद में discuss कर सकते हैं. This also. How many of you are taking tests? As long as, for example, in maths, arithmetic, algebra, geometry is not over, you should not take the test. Why are you wasting the test? It's an important thing. So I was also the national director of Time. Time is a Hyderabad-based company. So I was the CEO of all centers. Under me was a large team of material developers, most of them being from the top IIT and IIMs. Top mind for advanced level sectional tests. The fourth, ऐसे गिरते गिरते जो सबसे ordinary normal in terms of comparison बात कर रहा हूँ लोग होंगे, वो आपका first lot का material बनाएंगे.
सो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी होते जाती है, और कैट अगर उसको आप टेम कर लिया, अगर आपने एम कैट्स को टेम कर लिया तो आपका होगा ही होगा कैट में, मतलब आपका अच्छा परसेंटाइल आएगा. सो व्हेन यू टेक एन एम कैट विदाउट प्रिपरेशन, यू आर वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग दैट एम कैट, क्योंकि आपने पेपर बर्बाद कर दिया उसको. पेपर तो तभी लेगा जब आदमी पेपर के लिए तैयार है. टेस्ट क्यों लेगा? व्हाई विल यू टेक द टेस्ट? कोई टेस्ट ले रहा है, मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट ले रहा है, उसमें अलजेब्रा भी तो है. I'm not talking about topic wise test or foundation test. I'm talking about proper sectional test or full length test. You're not supposed to touch it as long as 80% of your preparation is not done. So किसी ने arithmetic, algebra, geometry कर लिया है लेकिन PNC नहीं किया है, numbers नहीं किया है, ठीक है, maybe he can still see how a sectional test is. किसी ने कम से कम lot 1, lot 2 RC नहीं किया है तो वो क्यों sectional test लेगा English के? So you're not prepared right now. First you'll prepare for the test. See, first is preparation. It's a separate activity. In that, your strategy will be different. You will study everything. Easy का भी preparation करना है, medium का भी, difficulty का भी, difficult level का भी. When you are coming to the test taking part, your entire way of thinking changes. So the same question जिसको आप बहुत चाव से पहले करते थे, आप सोचोगे अरे ये नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, हटाओ यार, कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा, इसके बदले 2-3 और लगा लूंगा. योर वे ऑफ थिंकिंग विल चेंज ड्रास्टिकली. That's the reason if you are trying to prepare and take tests at the same time, you are not only wasting your test, but you are getting confused. Because जब तुम पढ़ रहे होगे तभी तुम्हें लगा अरे ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अभी तो टेस्ट दिया था, इसमें नहीं, हटाओ, just leave it. First prepare, then start taking tests. There is no hurry. Anyways, my suggestion to you will be in the last 50 days before CAT, every day you should take one mock. So what is the hurry? ऐसे भी लास्ट 50 दिन तो टेस्ट ही लिखना है. अभी से टेस्ट लिख के क्या हासिल करोगे? कुछ नहीं करोगे. Don't do that. Even if you want to start taking tests, wait till at least July, August. Then start taking tests. First prepare. Preparation is, this is just, I'm just saying that देखो 30s में चले गए हैं, सब 30s में चले गए हैं. इनमें से कुछ के तो पुराने प्लेसमेंट है, IIM अहमदाबाद का अब 36, 37 है. This is the average placement. Any good student will get 2.5 to 3 times. If you get the same as average salary, that means you didn't get placed well. आपका प्लेसमेंट खराब हुआ, मतलब आपका 50 percentile आया. What is average? Average is 50 percentile. If I try to talk about a median rank, so the same thing applies here. You can just double it, triple it, whether you have WorkX or not. Especially those who have WorkX, they should at least double it, if not triple it. If luck is not favoring them, hard work say double kar de. So I'm saying it is good. I don't know any other profession in our country which is actually doing this, giving such placements. एंड प्लेसमेंट्स इज फॉर एवरीवन. ऐसा तुमने कभी देखा नहीं होगा ये बच्चों के प्लेसमेंट ही नहीं हो. मैं टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात हूँ, सभी के प्लेसमेंट होंगे. एंड यू सेलेक्ट. ऐसा नहीं आपको फोर्स करा है कि भाई वो कंपनी, कॉलेज में नहीं आप लोग को फोर्स करते चुपचाप से बैठो, यही हो गया, आप निकलो यहाँ से. यू चूज वेयर यू वॉन्ट टू गो. यू एक्सपेरिमेंट एज मच एज पॉसिबल. इफ यू कैन गो बैक, नीचे भी एक बार चले जाएं हम लोग. सुमित, आप देखिए जो हम लोग बता रहे थे सेकेंड लेवल के इंस्टीट्यूट्स, that also is not bad at all. It's very sound placement is happening across the country, and this is not happening across the globe. Indian success story is not world success story. World success story is not a success story only right now. They are going through a stagnant phase, a depression phase for a very, very long time. Indian market is going to be more buoyant, and it's going to be even better in coming times. So I expect these salary figures to just in the next 4-5 years, 3-4 years, just skyrocket. So I'll not be surprised that some of you guys, when you will be passing out of a top IIM or Excel or an FMS, the average would have jumped to 50 lakh or something like that, and most of you will be posting at least a crore plus package. Because that's how, if you look at the percentage growth, if you just keep doing the percentage growth, the annual growth, this is going to take you closer to 50 lakh rupees in the next 3 to 4 years. So it's a very good thing. It's not a bad thing at all. And plus you don't need to be special to be there. You just need to focus to be there. You need to be practical to be there. थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना है. इट्स अ बोरिंग एक्टिविटी. टाइम इन्वेस्ट करना है. कोई मज़ेदार ऐसा नहीं कि मज़ा आने वाला है, बट उतनी बोरिंग पढ़ाई भी नहीं है. इट्स बेटर देन मगिंग अप गोल्डन गाइड ऑफ हिस्ट्री बुक्स एंड ऑल दोज थिंग्स. इतनी भी बोरिंग पढ़ाई नहीं है, तो झेल भी ले सकते हो. ऐसा नहीं, मतलब यू कैन एंड्योर इट
It is possible. Sumit, if you can go back, any doubts you guys are having so far? I just want to first tell you guys whatever I know, and then I want you to ask me questions also. हो सकता है कि बताते बताते ही बहुत सारे मतलब पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो जाएं. ये क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ जो मैं बना के लाया हूँ. These questions are there. Let me quickly take you through these questions. Maybe आपका डाउट इनमें से एक डाउट हो. 64 questions are there. मैं तुरंत ये क्लैरिफाई करूँगा ये जो डाउट्स होते हैं. इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इम्प्रूव करें. What is there? You need to work on it. It's very, very simple. You just need to work on it. English is a language, so you need to have an immersive experience. मतलब आपको डूबना होगा लैंग्वेज में. It needs to be an immersive experience. ऊपरी ऊपरी से नहीं काम बनेगा. मतलब it's not possible. You need to be naturally good at English language. फिर क्या होगा, कहीं से भी पैसेज मुश्किल भी होगा, 4 सवाल होंगे तो कम से कम 1-2 सवाल तो कर लोगे उसमें. जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर कंफर्ट लेवल विद द लैंग्वेज. इवन दो जो टॉपिक आया है वो आपके लिए बहुत एलियन टॉपिक आया है. यू हैव नेवर रेड एनीथिंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक, सो automatically your confidence level will be low, your comprehension level will reduce, but just because of your comfort with the language you'll be able to at least manage. So you have to start reading, making your book. जो आप एक बुक रखेंगे, vocabulary book, उसमें आप लिखेंगे ये वर्ड, ये मतलब, ये सिनोनिम्स से ही पढ़ना है. The key to mastering vocabulary is through synonyms. बहुत इंपॉर्टेंट है. idioms, phrases, ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं भी हैं. क्यों? कैट में तो नहीं आते हैं, ओमेट्स में आते हैं. बट vocabulary इवन तो डायरेक्टली कैट में नहीं आता है, लेकिन अगर vocabulary पुअर है तो आपको VA में, RC में, दोनों में बहुत प्रॉब्लम होगा. इट्स सो यू हैव टू वर्क ऑन योर vocabulary. vocabulary के लिए ऐसा नहीं कि आप डिक्शनरी रटने लगे. आप इतनी पढ़ाई कर रहे होगे, RC पढ़ रहे होगे, आर्टिकल पढ़ रहे होगे, कुछ बच्चों को अखबार पढ़ना अच्छा लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, तो आपको वर्ड्स मिल रहे होंगे. आप उन वर्ड्स पे अच्छी तरह से रिसर्च करो. ये नहीं कि जल्दी जल्दी में मतलब बस मतलब देखा, ठीक है चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो. रिसर्च करो उस वर्ड पे. 1-2-3 महीने में क्या होगा, आप देखोगे आपका मोटा नोटबुक भर चुका है, आप उसको फिर रिवाइज करो, काफ़ी है. देन यू कैन जस्ट फोकस ऑन RC एंड नॉट just vocab is the building block. Once the block is built, you focus on the next thing which is going to come in the paper. Plus GD, WAT और इंटरव्यू की हम बात करें, so you need to start practicing from now only. मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट 15 दिन 20 दिन इंटरव्यू के पहले आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कम्युनिकेशन फ्लो और ये सब में ईज हो जाएगा. नथिंग लाइक दैट. यू नीड टू प्रैक्टिस. You need to practice. A little bit of practice every day is going to take care of the communication part, English part. Little bit every day. मैथ्स क्या है, बहुत पढ़ना है शुरू में, फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा मैथ्स की पढ़ाई 0 हो जाती है. इंग्लिश क्या है, हर दिन थोड़ा थोड़ा करना है एग्जाम के दिन तक. मतलब इट्स अ डेली डोज. एक बार में बहुत करने की कोशिश करोगे, इरिटेटेड हो जाओगे, छोड़ दोगे. थोड़ा थोड़ा करोगे, यू वोंट माइंड इट. So that's the first. Second, I am not from maths background. How to prepare for quant and DILR section? Same as someone from a maths background. So basics है, basics पढ़ेंगे, कैट के सवाल लगाएंगे, एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, सेक्शनल टेस्ट. तो पहले लॉट 1 करते हैं. लॉट 1 में कोई भी चैप्टर है तो आपको बुकलेट जो मिला है तो उसमें जो बेसिक बुकलेट है, सोचिए सिंपल इक्वेशन आप कर रहे हैं, पहले उस बुकलेट से करेंगे. फिर एक स्पेशल सपोर्ट बुकलेट मिला है क्वांट का, उससे भी सिंपल इक्वेशन करेंगे. सारे सब्जेक्ट को ऐसे फॉलो करना है. फिर जब ये हो जाए तो फिर वो सारे सब्जेक्ट्स के लॉट 2 एडवांस मटेरियल को करना है. जब वो हो जाए तो फिर आपको बेसिक, फिर इंटरमीडिएट और क्वांट के एडवांस सेक्शनल टेस्ट लेना है. वेरी क्लियर कट स्ट्रैटेजी इज देयर. फर्स्ट लॉट 1 के जो 2 किताब हैं, बेसिक के 3 किताब और साथ में एक स्पेशल सपोर्ट किताब मैथ्स का, वो पैरेलली करना है आपको. सो अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस किया बुकलेट से, बेसिक बुकलेट से, फिर स्पेशल सपोर्ट ऑन SM से भी टाइम स्पीड डिस्टेंस किया, और फिर स्टूडेंट होम पेज में भी जाके टाइम स्पीड डिस्टेंस का टेस्ट लिया. दैट्स हाउ यू हैव टू गो अबाउट. एक बार वो हो गया तो फिर लॉट 2 किया, जो एडवांस लॉट है आपको मिलेगा.
फिर वो हो गया तो सारे जो आपके सेक्शनल टेस्ट हैं उनको आप करना शुरू करो। जब सेक्शनल टेस्ट अच्छे से होने लगे तो फिर आप फुल लेंथ टेस्ट, वो भी कौन से, ऑल इंडिया मॉक्स नहीं, जो सैम कैट्स है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड मॉक कैट्स है स्टूडेंट होम पेज पे, वो आप करना शुरू करेंगे। जब आप उस पर अच्छा स्कोर करेंगे तब आप एम कैट्स पे आने लगेंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो। प्लस जो बच्चे बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारे कर लिए, वो मुझे बोलेंगे तो मैं उनको और मटेरियल दूंगा। कैसे, जैसे मैं बोला GRE का दूंगा, GMAT का दूंगा, वैसे ही मैथ्स का दूंगा। बट फर्स्ट यू हैव टू फिनिश आवर मटेरियल, देन आई विल गिव यू मोर मटेरियल फॉर प्रैक्टिस। नहीं तो आप किसी का भी मटेरियल नहीं सॉल्व करोगे। वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी इज देयर। प्लस बहुत डरपोक हो मैथ्स में तो आपको पता है कि अरिथमेटिक और एल्जिब्रा यही लायंस शेयर है पूरा, आप उस पर मेहनत करो ना। कम से कम आप यही दो अच्छे से कर लोगे, हो सकता है कि लाइक योर मैथ्स का जो कट ऑफ है वो क्लियर हो रहा है, फिर बाद में जाके ज्योमेट्री कर लिया, फिर थोड़ा सा नंबर्स देख लिया बाद में जब टाइम बचा तो। सो प्लान करके उसकी पढ़ाई करनी है। हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है तो और भी अच्छी बात है। क्यों, वो जब इंटरव्यू लेंगे देखेंगे तुम तब भी फाइट मार रहे हो, दे विल बी इम्प्रेस्ड, दे विल टेक यू। लाइक बीरेंद्र मिश्रा, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु वेंट टू IIM लखनऊ, ही वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। IIM लखनऊ भी हो गया, IIM कोड़ीकोड भी हो गया, IIM इंदौर भी हो गया, IIM लखनऊ में पढ़ रहा है, वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था। मेनी स्टूडेंट्स आर लाइक दैट। उनके वीडियोस भी हैं, देखते हैं, टाइम मिलेगा तो दिखाएंगे, सबके वीडियोस हैं वेर यू कैन लाइक सी देम हाउ दे हैव इम्प्रूव्ड अपॉन देमसेल्फ एंड वेयर दे वर अर्लियर। मॉक टेस्ट और ये सब की बात बाद में करूँगा, टेस्टिंग की बात बाद में करूँगा मैं। I understand the concepts, but I'm unable to solve questions when I'm taking tests. Maybe because you are taking anxiety and all, but it is again a test-taking related doubt. We will discuss it. I cannot concentrate for more than an hour or so. तो कौन बोल रहा है आपको एक बार में बहुत लंबा बैठने के लिए? ये बच्चों के ही सवाल है जो मेरे पास आए हुए हैं। Who is asking you to study for a lot of time? मैं 1.5 घंटा पढ़ता था, ब्रेक लेता था, फिर 1.5 घंटा पढ़ता था, ब्रेक लेता था, ऐसे सुबह से शाम पढ़ता था 5 बार, 7.5 घंटे हो गई, पढ़ाई खत्म। 5 बार बैठा, अगर मानो कोई नहीं उतना पढ़ सकता है, 4 बार बैठा सिर्फ 1.5 घंटा, पूरे 24 घंटे में 6 घंटे हो गए, हो गया, काम खत्म हो गया ना उसका। लाइक यू कैन ऑलवेज प्लान एंड टेक आउट टाइम एंड यू कैन स्टडी, बिकॉज दैट इज वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट। सोचो कोई जॉब कर रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जॉब है। अब मैं कैट ट्रेनर हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कैट ट्रेनिंग है। तो तुम बच्चे हो, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो उसी का तो दिन भर है, मतलब 24 घंटे में आप खाइए पीजिए सोइए, लेकिन मेन काम तो यही है, पढ़ाई करना और करियर बनाना। और काम क्या है अभी तुम्हें, और तो कुछ काम है नहीं। सो लाइक कम घंटे के लिए, मतलब एक बार में बहुत लंबा मत बैठा करो। शॉर्ट टर्म बट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम शुड बी हायर, दैट्स द वे। बिकॉज बहुत पढ़ने, एक बार में बहुत पढ़ोगे तो थक जाओगे, ब्रेन में भी एसिमुलेशन नहीं हो रहा है, ध्यान इधर उधर जा रहा है। हाउ टू, माई कैलकुलेशन स्पीड इज नॉट गुड, वेरी गुड, नॉट रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन स्पीड इज नॉट रिक्वायर्ड, ए कैलकुलेटर इज देयर। इफ अ क्वेश्चन इज देयर वेर यू हैव टू डू 234/9, please don't use your brain to do 234/9, just use the calculator, type it there, 234 divided by 9, you get the answer, put it there and move ahead. It's not important. How to avoid distractions, as I tend to get distracted easily given my age. ये भी पूछा है किसी ने, इसका मतलब सब समझ चुके हैं यहाँ पर। You have to fight it. You have to understand that this year won't return. तुम्हें अगर इतना ही है दैट यू वांट टू एक्सप्लोर, यू एक्सप्लोर लेटर, क्रैक द टेस्ट, एंजॉय, एक्सप्लोर, बट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। whenever you get distracted, bring back your mind. Okay, so it is not possible to have 100% concentration all the time. Sometimes you'll be studying, you'll be distracted, but when you are getting distracted, you will know that moment that you are getting distracted. So get your mind back. अच्छा ठीक है यार, let's focus again. तब आपका ऐसा कोई ना परफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। कुछ बच्चे वेट करते हैं परफेक्ट माहौल का, तभी वो पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। 10 दिन में हो सकता है 1 दिन परफेक्ट माहौल था, 9 दिन इम्परफेक्ट माहौल था और आपका पढ़ाई नहीं हुआ। क्यों? आप वेट कर रहे थे अच्छा फील करने का। सो व्हेन यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, गेट योर सेल्फ बैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैट, आई हैड अ गर्लफ्रेंड, आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक कैट। Then I prepared for CAT without the girlfriend. I was able to crack CAT. It's a personal experience. It's a personal experience. It happened with me.
Because I was also giving time to my girlfriend. That's the reason she was my girlfriend. If you don't give time to someone, why will they be your boyfriend or girlfriend? Tell me. कोई एक लड़का है राजेश और वो सिर्फ कैट की तैयारी कर रहा है, उसका ब्रेकअप नहीं होगा, इट्स बट ऑब्वियस उसका ब्रेकअप होगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं 2 बार कैट में 95-96 परसेंटाइल में फंसा. मुझे टॉप IIM नहीं मिल रहा था उतने में. दोनों टाइम द गर्लफ्रेंड वॉज देयर. एंड good moments also, bad moments also, fightings also, and sometimes fighting just before the exam, maybe deliberately. Some people can be cruel, they can be vindictive. So if you have fought with them, they will wait. Maybe they'll wait for the right moment. So I recall once I am going for CAT, the night before only the girlfriend has fought a lot. So I am not in the right frame of mind. I'm not able to give my best. So you have to be very careful about this. See, a human being is not a toy. It's not a dog. It's not a cat. A human being will respond, will react, will get angry, can be negative. So you have to be very careful. What do you want? You want the money? You want the boy girl? Boy girl can come any time in life. So there's no age for having a happy relationship. But this time is very, very crucial. I have seen so many students, some of my students, they keep messaging me and they say that I changed their life, I helped them a lot. Why? Because they were having a bad relationship time when they were preparing for CAT. So I tried to brainwash them that just get out of this. And they went to a top IIM. So they are happy they were able to make the right decision. Please don't get distracted. No movies. Don't watch movies just during preparation phase. Consumes a lot of time. Plus, it unnecessarily, sometimes the movie is over, you're thinking about the movie. You're getting distracted. You don't have time for. So do things which are short-term entertainment, like music. Like when I was preparing what was happening, I was staying at my bua's place, here close to Tulsi Theatre. And 1.5 घंटा पढ़ा, फिर बुआ बूढ़ी है तो रेडियो ऑन, सड़े गले गाने चल रहे हैं. ठीक है, दैट इज स्टिल गुड. मैं सुना 15-20 मिनट सुना, रिलैक्स किया, थोड़ा खाया, फिर पढ़ना शुरू कर दिया. मतलब डोंट डू एनीथिंग विच विल एग्जॉस्ट यू. Watching television can exhaust you because you're using your eyes and you're studying also. So if someone is studying 7.5 hours, his eyes are anyways exhausted. And if you're going to watch a lot of television, it's going to get further exhausted, so you'll start getting irritated. You need to do things which doesn't exhaust you a lot in those short periods. It's very, very important. Do not make groups and study. Why? Again, you will get distracted maybe. And maybe you'll gossip. Maybe you'll waste a lot of time. Don't make groups. It's a solitary, like how one Wordsworth poem was Solitary Reaper. It's a solitary exercise. You need to do it all by yourself. It's a lonesome journey preparing for an exam. For hundreds of hours, from today till CAT day, for hundreds of hours total, you'll have to just be with yourself and study and manage your emotions, understand your emotions. So don't get distracted. This is the most important thing. Right schedule to follow in the last days to CAT. A lot of time is left. We won't discuss this. We'll discuss it in August maybe. But I told you in last days you're just taking the paper, nothing else. How should final year students manage their CAT preparation along with their semester exams? Your semester exams are not that tough. You need to go out of your comfort zone. It's not that tough. You just need to study. That's all. You will still get a lot of time left. So when your exams are happening, don't prepare for CAT a lot. When there are no exams, prepare a lot for CAT. You manage accordingly. But don't get very poor marks in college. Why? It will dampen your confidence when you go for the interview. You'll be scared. Because that professor who's taking the interview is a professor. He's an academician. It's like a BBA student is going for an IIM interview and he has got very poor marks in his 3rd year in BBA. He's saying, sir, I want to do MBA because I did BBA and I'm able to connect MBA. But he's saying, you didn't connect to BBA at all. See your marks. So, whichever year you are in, please get good marks. Get top marks. So, even if you're in 3rd year in college, get top marks. First, second में बहुत भी खराब आया है, it's okay. 3rd year में भी अच्छा होगा, you'll be able to give a good show there. Those जिनका college खत्म हो गया, don't think about it. It's over.
You can't change your marks now. So why the hell you want to think about something which you can't do? Just let it be. पुअर मार्क्स में भी अच्छे आईएम मिलते हैं, ऐसा नहीं है. अगर आप कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल लाओगे, वही मैंने एक्सेलसियर ग्रुप में देखा है हमेशा, जो 99 परसेंटाइल. एक्सेलसियर की ट्रेनिंग होती है कि आप 99 के ऊपर लाओ. 99 के ऊपर बहुत सेफ हो जाता है सब कुछ. किसी भी बच्चे को मैंने देखा है उसको 99 के ऊपर आता है, उसको कोई ना कोई अच्छा जो टॉप इंस्टीट्यूट है, ब्लैकी, एफएमएस, एक्सेलरा, ये सब जो टॉप इंस्टीट्यूट है, उसको कहीं ना कहीं मतलब ही गोज. बट ऑब्वियस. और सब जगह कंपनियां सेम ही आती हैं, जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट से, ऐसा नहीं कि सेम कंपनी सेम प्रोफाइल एवरीवेयर. वेरी माइन्यूट डिफरेंस इज देयर. दीज आर अगेन questions which are not very relevant. How important is general awareness, GK for selection? No, it is not at all important. CAT में GK नहीं है, SNAP में GK नहीं है, NMAT में GK नहीं है, ZAT में GK है, बट वो क्यों है पता नहीं, बिकॉज वो मेन पेपर के साथ नहीं है तो उसकी मार्किंग काउंट नहीं होती है. GK इज नॉट इम्पॉर्टेंट. कैन वी डू सेलेक्टिव प्रिपरेशन? यस, कर सकते हो, बट अभी तो बहुत टाइम है. सेलेक्टिव प्रिपरेशन तो वो करेगा ना जो सोचो अगस्त सितंबर में सोच रहा है कैट की तैयारी करने का. अभी से कोई कैट की तैयारी कर रहा है या पहले से कर रहा है, वो सेलेक्टिव प्रिपरेशन क्यों करेगा? सेलेक्टिव प्रिपरेशन हैज टू डू विद लेस अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, पॉसिटी ऑफ टाइम. यू हैव टाइम, सो व्हाई यू वांट टू डू सेलेक्टिव प्रिपरेशन? इवन दो पीएनसी हो सकता है 0 क्वेश्चन आए या 1 क्वेश्चन आए, बट जब अगर बहुत टाइम तुम्हारे पास बचेगा तो थोड़ा बहुत तो पढ़ दोगे. क्यों? हो सकता है स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल. एवरी क्वेश्चन मैटर्स. जब तुम देख रहे हो कि कुछ कुछ सेक्शन में 4 सवाल सही करने से 85-90 परसेंटाइल बन जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया ना. एवरी सिंगल क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. नीचे जाएंगे. हाउ टू मैनेज प्रिपरेशन एंड जॉब साइड बाय साइड. कितने बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं? के कुछ कर नहीं सकते, यू जस्ट हैव टू मैनेज इट. नो अदर वे इज देयर. कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं, आते हैं बोलते हैं कि सर मैंने सोचा है अगस्त या सितंबर में क्विट कर दूंगा जॉब, अक्टूबर नवंबर घर पे पढ़ूंगा. बट अक्टूबर नवंबर में तो पढ़ना ही नहीं है ना, सिर्फ 2 घंटे का टेस्ट लेना है और 1 घंटे की एनालिसिस करनी है. तो घर पे बैठ के करोगे क्या दिन भर छुट्टी लेके? पढ़ना अभी है. द टाइम इज नाउ. मिड में से मिड अगस्त, ये बहुत क्रूशियल टाइम है कैट की तैयारी का. आपको मिड में से मिड अगस्त में पढ़ना है. मिड अगस्त से मिड सितंबर सेक्शनल टेस्ट इंप्रूव करना है, और मिड सितंबर से मिड नवंबर अ मिक्स ऑफ फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट. दिस इज हाउ द प्रिपरेशन हैज टू हैपन. प्लस कुछ बच्चे जानता हूँ मैं, जॉब पे है, टाइम मिला 20 मिनट आरसी कर लिया, मतलब थोड़ा अपना टाइम निकालते रहते हैं. यू टेक आउट टाइम. कम सोना पड़ेगा बिकॉज आपको टाइम कम मिल रहा है. यू हैव टू एडजस्ट योर स्लीपिंग आवर. जहाँ नॉर्मल बच्चे 8 घंटे सोएंगे एक बार में कम से कम, जो वर्क एक्स वाले बच्चे हैं वो 5, 5.5, 6 घंटे में ही काम चलाएंगे दिन भर में. सो यू हैव टू मैनेज. देयर इज़ नो अदर वे. प्लस ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जो नॉन वर्किंग बच्चे हैं वो तो 1.5 घंटे ऐसे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो वर्किंग वाले बच्चे उनको तो टाइम नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है 3 घंटे मिला तो एक बार में ही उनको मजबूरन 3 घंटा पढ़ना पड़ा. स्लाइट डिफरेंस इन स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू हैपन. टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी को पूरा ही हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि ये आपके लिए है नहीं. कैट वर्सेस ओमेट्स मैंने बता दिया है, इसको भी अभी स्किप कर देंगे. डू ऑल MBA इंस्टीट्यूट्स हैव, अब ये थोड़ा कैट रिलेटेड क्वेरीज डिस्कस करते हैं. डू ऑल MBA इंस्टीट्यूट्स हैव सेक्शनल कट ऑफ? नो, दे डोंट हैव. ओनली द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैव सेक्शनल कट ऑफ. जो एकदम ऊपर के इंस्टीट्यूट्स हैं, ये टॉप IIM और ये सब जो है, और FMS है, और SP जैन है, MDI है, IITs है, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ होता है. नीचे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है. नो कट ऑफ इज देयर. नीचे आप आएंगे तो इट्स अ फ्री फॉल. सबका साथ सबका विकास, सबका ही एडमिशन हो जाएगा. एवरीवन विल गेट थ्रू. So if you name any ordinary college to me, anyone can get admission there. वो जो admission का process है, it's just an eye wash, it's just a fake mirror. कोई भी institutes हो, मतलब आप अगर 500, अगर इंडिया में 2000 मिनिमम MBA इंस्टीट्यूट्स होंगे तो उसमें से 1950 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं. तो MBA का क्या है, MBA की वैल्यू नहीं है. कहाँ से MBA की उसकी वैल्यू. ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज नॉट लाइक बिकमिंग डॉक्टर की डॉक्टर साहब है, कहीं से भी हो लेकिन है डॉक्टर साहब. इट्स नॉट लाइक दैट. MBA हैज नो वैल्यू. MBA फ्रॉम अ टॉप बिजनेस स्कूल हैज वैल्यू. सो एज यू गो बिलो,
anyone can get admission because it's not tough, people are not aspiring for it. So focus only on the top institutes. That's the reason the sectional cutoff become important. Plus sectional cutoff है भी क्या, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स के भी हैं 75-80 परसेंटाइल, मतलब 3-4 सवाल किया सेक्शनल कट ऑफ हो गया, 5-6 सवाल किया सेक्शनल कट ऑफ पार हो गया, तो इतना भी क्या मुश्किल है, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. What are placements like in MBA institutes? It's like dream sequence placements in the top business schools. आप लोग को मैंने दिखाया भी अभी. It's a dream world. Placement is very good. Then what is the percentile requirement for a general category to get a call from Blackie? Blackie is the top 6 IIMs. Again general category from where? मतलब कौन सा academic background क्या है? 85 को भी जनरल कैटेगरी में IIM अहमदाबाद मिलेगा, 90 को भी मिलेगा, 95 को भी मिलेगा, 98 को भी मिलेगा, 99.7 पे भी हो सकता है नहीं मिले. डिपेंड करता है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है. सो 2 थिंग्स आर देयर, कैटेगरी, एकेडमिक बैकग्राउंड, ये दोनों से प्लेसमेंट का डिसीजन होता है. हैज़ कैट बिकम मोर चैलेंजिंग इन रिसेंट ईयर्स? नहीं, कैट बहुत कोई सरप्राइज नहीं है, ऐसा नहीं ऊपर नीचे, पहले ही पता है DILR मुश्किल आएगा, मैथ्स डुएबल आएगा और इंग्लिश जैसा आता है वैसे ही आएगा, मतलब कोई सरप्राइज नहीं है. देयर इज नो सरप्राइज कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है. व्हाट इज दिस ईयर्स कैट पैटर्न? इट विल बी द सेम. यू डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ सरप्राइज और समथिंग लाइक दैट. इट विल बी माई सेकेंड कैट अटेम्प्ट. व्हाट एक्स्ट्रा शुड आई डू? कितने लोगों का सेकेंड अटेम्प्ट होगा कैट 23? हाथ उठाइए जो लोग का सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है. फर्क क्या होगा? हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम, सबका अलग है. व्हाट डिफरेंट, मतलब आपकी जर्नी क्या है उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है क्या क्या चीज़ें हैं. जैसे मैंने आपको बताया मैंने क्या क्या डिफरेंट किया फाइनल जो मेरा कैट का अटेम्प्ट था. जैसे आपको बोला मैंने 2 बार 95-96 परसेंटाइल में फंसा रहा, तो तीसरे बार में एक तो आपको मैंने सबसे बड़ा सीक्रेट दे दिया, आई लेट गो ऑफ द गर्लफ्रेंड. दैट वॉज द बिग थिंग. सेकेंड इज एक टाइम टेबल के थ्रू, जैसे एक टाइम टेबल होता है उसको फॉलो किया. ये नहीं कि जब मन पढ़ा, पहले तो 2 अटेम्प्ट में था, मन कर रहा है 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, मन कर रहा है 2 दिन पढ़ नहीं रहा हूँ, मन कर रहा है घूमने चले जा रहा हूँ, मतलब मन मौजी. नेक्स्ट में नो मन मौजी, एक टाइम टेबल है, आप एक रोबोट है, वो टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, बस खत्म. उठने का टाइम है, सोने का टाइम है, नहाने का टाइम है, खाने का टाइम, एवरीथिंग इज टाइम बाउंड. शुरुआत में क्या होगा, आप रोने लगोगे, खुद को पीटने लगोगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है, इट्स ओके. इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ योर इमोशंस, बिकॉज अचानक से तुम एक उड़ते पंछी हो और तुम्हें बंद कर दिया जा रहा है एक पिंजड़े में. यू हैव टू गो बाय अ क्लॉक, तो आप बंद हो गए, तो आपको बहुत सफोकेटिंग लगेगा शुरुआत में. मैंने जब ये टाइम टेबल बनाया, उसको फॉलो करने लगा, बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी. 1 हफ्ते 10 दिन मेरी हालत ख़राब रही, उसके बाद सही हो गया, मैं सुधर गया. आई स्टार्टेड फॉलोइंग दैट टाइम टेबल, स्टार्टेड एंजॉइंग दैट टाइम टेबल. सो यू हैव टू सेट द टाइम टेबल. That is very very important. Third, please keep negative people out of sight. कोई नेगेटिव लग रहा है, तुम बॉस हो तो बोलो यार तू निकल जाए यहाँ से, तुम बॉस हो तो खुद ही निकल जाओ वहाँ से. 2 ऑप्शन है, इधर यू स्टे और यू आस्क द पर्सन टू लीव. जस्ट अवॉइड नेगेटिविटी. आदमी ऐसे ही इतना मतलब चैलेंज, द पर्सन इज गोइंग फॉर अ बिग चैलेंज और दूसरे का नेगेटिविटी लेगा तो क्या ही होगा उसका, कुछ नहीं होगा, पोपट हो जाएगा. सो घर पे भी कुछ लोग नेगेटिव है तो उनसे बात ही मत करो, मतलब लड़ो मत, जस्ट इग्नोर नेगेटिविटी. फोर्थ, प्लीज स्टडी एज पर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ऐसा नहीं कि दोस्त ऐसा पढ़ रहा है तो तुम भी ऐसे ही पढ़. तुम्हारा जो स्ट्रेंथ वीकनेस है उसके हिसाब से ही होगा ना, घंटे डिवीजन ये सब. अपना प्लान बनाओ, दूसरे का प्लान मत फॉलो करो. पता है तुम्हें किसका क्या वेटेज है कैट में, कौन से टॉपिक आ रहे हैं, क्या है, गो अकॉर्डिंगली. नीचे जाएंगे. एज रेस्ट्रिक्शन है फॉर अटेम्प्टिंग कैट? नहीं है कोई. कितनी बार दे सकते हैं? 100 साल देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता. नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू. बट ऐसा क्यों करोगे? जेंडर डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी पॉइंट्स ने पूरा IIM का कल्चर ही बदल दिया. मेरे टाइम में 5% लड़कियां होंगी, मैक्सिमम 10% लड़कियां होंगी, लेकिन अब 50% प्लस गर्ल्स हैं, बिकॉज ऑफ द जेंडर डाइवर्सिटी पॉइंट, बिकॉज इट्स क्वाइट सब्सटैंशियल, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. और ये हेल्दी है, ये बहुत हेल्दी है. नहीं तो पहले क्या था, 200 का बैच 10 लड़कियां, 190 बच्चों का क्या हुआ, लड़कों का गुलाम है वो, दे आर स्लेव्स. जो लड़कियां बोलेंगी बस खत्म. होमवर्क कुछ लड़कियां क्या कर रही हैं, मैसेंजर पे भेज रही हैं सबको ओपनली, क्या कौन मेरा प्रोजेक्ट बनाएगा, इधर से बच्चे मैं करूँगा, मुझे मौका दो, आई वांट टू मेक इट.
इट वॉज वेरी सिकनिंग काइंड. मतलब मैं जब गया था आई फेल्ट डिस्गस्टेड बिकॉज मैं BA इंग्लिश से गया था, तो वहाँ पर तो 80% लड़कियाँ होती हैं, तो मेरे को कल्चर समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है यहाँ पर. फिर मैंने एक ग्रुप बनाया और कुछ 4-5 लोगों के साथ कि चलो इसको बंद करते हैं, दिस इज़ टू मच. तो फिर हम लोगों ने कुछ इवेंट्स वगैरह किए कि लेट्स डू समथिंग. नहीं तो कुछ यही चल रहा था पूरे इंस्टीट्यूट में 1 महीना. सो इज़ गुड. एकेडमिक डाइवर्सिटी अनदर वेरी गुड थिंग. क्यों? मेरे सारे दोस्त बीटेक हैं, सभी कोई बीटेक है, जिससे भी बात करूं ये भी बीटेक, वो भी बीटेक, ये भी बीटेक. अब ऐसा नहीं है. नॉन बीटेक स्टूडेंट्स भरे हुए हैं, जैसे गर्ल्स आर 50% और मोर देन दैट, नॉन इंजीनियर्स आर ऑल्सो 50% और मोर देन दैट बिकॉज ऑफ दिस academic diversity points. I don't have good marks in school and college. Do I stand any chance of getting into a top IIM? Yes, you do stand. Which IIM I don't know. You'll get a top business school. CAT में अच्छा करोगे, top business school मिलेगा. बोलोगे सर लेकिन मुझे वो पर्टिकुलर नहीं मिला. अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसी लेवल का दूसरा था वो तो मिल गया ना. फ़र्क क्या पड़ता है? मतलब कोई बच्चा है अहमदाबाद जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये तीनों एक ही लेवल पे हैं एक्चुअली. देयर इज़ एब्सोल्युटली नो. कोई लखनऊ जा रहा है, कोई कोझिकोड जा रहा है, नो डिफरेंस. इंदौर जा रहा है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, इट्स द सेम. सो तुम्हें अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए, तुम्हारा एकेडमिक्स पुअर भी होगा, तुम्हें अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा. That is for sure. What kind of hobbies will help towards both selection into IIMs? बेसिकली अगर किसी की भी हॉबी है, बहुत सबकी हॉबी है, कुछ ना कुछ होती है. अगर कोई अपने हॉबी में बहुत अच्छा है तो सब बोलते हैं ना दिखाओ यार कुछ करो. कोई गाता है बहुत अच्छा तो गाओ गाओ. तो ऑफकोर्स अगर आप अपने हॉबी में अच्छे हैं तो ये अच्छी बात है, इससे आपको हेल्प तो मिलेगा ही ना. प्रोफाइल में हेल्प मिलेगा, इंटरव्यू में भी हो सकता है हेल्प मिले. सो यू नीड टू बी गुड एट योर हॉबी. इफ़ यू हैव अ हॉबी यू हैव टू बी गुड एट इट. नीचे जाए. फैमिली प्रेशर है बहुत ही गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए, क्या करें? कैट और गवर्नमेंट जॉब के बीच में कंपेयर करें. मैंने ऑलरेडी कंपेयर कर दिया है. देयर इज नथिंग टू कंपेयर विद. क्या ही कंपेयर करें? इट्स लाइक राजा एंड रंक. व्हाट विल यू कंपेयर? मतलब मे बी द गवर्नमेंट गाइज एंटायर ईयर सैलरी will be the salary of one of these guys after 5-6 years of one day. So what do you compare? There is no comparison. Zero comparison is there. Plus, there's a lot of politics in government jobs. Caste-based politics, region-based politics, religion-based politics. I know because my father was a government officer. So I know there is a lot of politics and you need to be in the right books of the right people to get right postings, promotions. बहुत झमेला है, बहुत झमेला है. लेट गवर्नमेंट जॉब और बेचारे जो और मतलब कम एक्सपोजर वाले उनको अब आने दो ना गवर्नमेंट जॉब्स में. तो मूव करो, यू आर गेटिंग एक्सपोजर, यू कीप मूविंग, मेक वे फॉर इवन दोज पीपल हु आर बिलो यू फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स. हाउ टू डील विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी? सबसे पहले डोंट डू ड्रग्स. दैट्स द फर्स्ट थिंग. द आंसर इज यू हैव टू डील विद इट. मतलब उसको झेलना पड़ेगा, वो जाने वाला नहीं है. हर दिन डर लगेगा, एग्जाम के पहले भी डर लगेगा. डरने दो, क्या ही फर्क पड़ता है. मुझे याद है जो मेरा फाइनल अटेम्प्ट था 99.52 जिसमें आया, तो एग्ज़ाम था, सुबह मुझे थोड़ा डर लग रहा था. मतलब डर क्या लग रहा था, एंजाइटी तो थोड़ी हो गई बिकॉज एग्जाम में 2-3 घंटे में उल्टी आ रही थी. उल्टी किया, सही लगने लगा, चला गया पेपर देने. इट्स ओके, इट्स नॉर्मल. यू कांट रिमूव द फियर, एलिमिनेट द फियर. द फियर इज देयर बिकॉज यू वांट समथिंग. So if you want to eliminate the fear, you actually have to stop wanting it, but that will further like take you down the drain. Then you will not work hard only because you don't want the target only. So fear will be there. That use it to your advantage. It helps the best in time management. Fear helps the best. मेरा एक senior था. Now he is a successful doctor. He went to AIIMS and he has his own hospital. So he used to come first. I was in Delhi public school. So he always used to come first. तो वो बोलता था कभी कभी सो रहा होता है, अचानक सुबह 3-4 बजे उठ जाता है, क्यों? सपने में देखा सेकंड आ गया. So fear was driving him. Arun Kedia. His name is Arun Kedia. Fear was driving him. All toppers are driven by fear. Fear is driving them. I asked one girl, my student only, उसको 10th में 10 CGPA आया, 12th में 97.8% आया, और उसने IIM इंदौर का एक एग्ज़ाम होता है IPM
फॉर 5 years MBA at IIM इंदौर आफ्टर स्कूल, तो वो ऑल इंडिया रैंक 1 उसमें लाई। फिर वो IIM इंदौर में जो फर्स्ट 3 years था उसमें भी फर्स्ट रैंक लाई। And she was the course coordinator. She got few courses added also. And when she was in her final year, 3rd year out of the 5-year program, she took CAT because she wanted a better IIM. She cracked CAT also with above 99 percentile. And then she joined IIM Bangalore. So I asked her, what is motivating you? So she said, I'm very competitive. Very competitive. So fear, competition, like different things motivate different people. Let it motivate you. What is wrong? There is nothing wrong. Don't try to be a sant or a baba in today's age. It is not possible. It's not possible. If someone tells you be perfect, be a this, be good human being, stop being greedy, don't do this, don't do that, finally what will happen? You will implode. One is explosion. You will implode inside. You know yourself. Don't judge yourself harshly. Look at your strengths and weaknesses. Utilize it to your advantage. That's how you have to basically plan your career. Fear of failure. How to overcome the fear of failure? Can anyone answer? Give a simple answer to this question. How to overcome the fear of failure? Anyone who can, give 1 word, 2 word? Fail हो जाइए। वो तो हो ही रहा है, इसीलिए तो fear of failure है उसको। The answer is actually opposite. To overcome the fear of failure, succeed. That's the only way. सो इन मैक्सिमम पीपल आप देखेंगे, मैक्सिमम लोग जो हैं लाइफ में कुछ किए नहीं हैं, इसीलिए उनको ऐसा लगता है वो नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग। अगर आपको ये बदलना है, एक छोटा मैं एग्जांपल दूंगा। आपको कैट से डर लगता है, पहले आप पढ़ाई करो बहुत, और फिर जब आप मॉक में अपने रिजल्ट देखने लगोगे तो आपका फियर ऑफ फेलियर कम होने लगेगा, बिकॉज यू आर सक्सीडिंग इन योर मॉक्स। इफ यू सी सक्सेस, your fear of failure will go down. It's a very practical thing. The more you think that something is not achievable, you will have that fear, you'll fail, because you know you will fail. Your mind is saying, your body is saying, your spirit is saying, you keep working hard. So initially those people who have never worked hard, they will need to give a lot of hours. So ये वैसे ही कि सोचो 11वें मार पे एक लकड़ी कटने वाली थी, someone is using an axe, 10 blows, कुछ नहीं हुआ। 11th पे होने वाला तो 10th पे ही बोला यार मेरे से नहीं होगा, यार होगा नहीं, मेरी है लेवल नहीं है, औकात नहीं मेरी करने की, पर 11th में वो टूट गया था लकड़ी। सो जिन्होंने पहले से एक्स नहीं चलाया है उनको टाइम लगेगा थोड़ा, बट दे विल सी द रिजल्ट। द ओनली वे यू कैन, एंड द मोर सक्सेसफुल यू विल बी, द मोर कॉन्फिडेंट you will become, and what might start happening is that you know you will win. So rather than going with this attitude that किसी तरह बचाना है, defensive होना है, you will be offensive because you want to capture it all, you want to win it all. You will have the conqueror's mentality. If suppose there is any sort of competition and we all are competing, I am also competing. If I'll be competing even with a student who I am fond of, I will destroy that person. I'll try to think, let that person be 0 and I'll try to get 100. If that person gets 1, I'll get 101. Because the mentality is the business shark mentality, conqueror's mentality. So one very good thing that will happen is when you go to these top business schools, you will see a lot of people who have this kind of mentality. They will be sweet because they are sweet people. They'll be friendly. They're nice people. But when it comes to competition, and if you're competing against them, they will destroy you with their performance, of course. And once they're out of the business school, then there is no holds barred matches. देखा है तुम लोगों ने कभी WWE में? मैं छोटे में देखता था, कोई रूल्स नहीं होगा फिर तो। all possible ways to win, to stay at the top. So you have to understand this. Who are you competing against? Because you are going in that culture, na? You want to go into a top IIM and then you want to either be a top businessman or a top CEO. So who are you going to be competing against? You will be competing against, again, ruthless conquerors who will be having this imperialistic kind of a mentality where they want to dominate all and they want to have their castles and they want to be rulers and they want to be, respected, revered. This is known as, so what is this type of characterization? In the field of organizational behavior, this type of character is known as a high Machiavellian character. So you will be encountering high Machiavellian characters in top business schools. That will be the first shock to people who are innocent actually. Their innocence will be gone.
Okay, due to my past failures, my parents don't trust me. Why will they trust you? Tell me, you have not done anything. Why should anyone? Nobody trusts anyone just like that. They can love you. When I told my mother that I want to go to a top IIM, she started laughing. Because she knew that this guy is getting second division, or I don't know how is he passing even in school and all. How can he, get a high percentile? But then when I started studying, and then I started getting like all India rank, to a top 20 ranks in mock cats and all, they thought that yeah, he can make it. लेकिन कुछ दिखाओगे ऐसे तो अंतर्यामी थोड़ी है कोई कि क्या करेगा आदमी दूसरों को पता है. तुम मेहनत करो, रिजल्ट आएगा, लोग तुम पे ट्रस्ट करेंगे, तुम पे पैसे लगाएंगे आगे जाके. बट नॉट लाइक दैट. फिर फैमिली इंगेजमेंट्स कंज्यूम अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. देखो, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट योर ओन मैरिज, प्लीज फोकस ओनली ऑन कैट प्रिपरेशन दिस ईयर. अच्छा, खुद की शादी कर रहे हो, देन इट्स रिक्वायर्ड, यू हैव टू बी देयर, डू इट. बट बिकॉज सम ऑफ द पीपल आर वर्क एक्स पीपल एंड दे माइट बी मैरिंग, but otherwise just stay away from family engagements. It consumes a lot of time, it exhausts you, your 1 day is gone or 2 days gone. अरे एक दिन ऐसे ही तुम लोग किसी तरह मतलब you're hanging by a loose thread. 1% चांस है, अगर मेहनत करोगे you will get the topmost institute and earn crores in your 20s. Why take a chance? So every single day is important, every single hour is important. You need to have that thing in you. नीचे CV related. Is it compulsory to have academic, sports, co-curricular achievements? How do I build my profile if I am lacking on this front? यहाँ ना 2-3 चीज़ें हैं. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम कितना है तुम्हारे पास. अगर तुम्हें ऐसे भी कैट का अभी तैयारी बहुत पुअर चल रहा है तो तुम्हारे पास टाइम नहीं. दो स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग कैट 23 दिस ईयर, दे डोंट हैव टाइम नाउ. एज आई टोल्ड यू दैट मिड मई से मिड अगस्त में ही तो सब पढ़ना है, तो फिर टाइम कहाँ है इसमें? यू डोंट हैव टाइम. इंटर्नशिप्स भी करनी है, आप स्टे एट होम पार्ट टाइम इंटर्नशिप करो. उसमें क्या है, दिन में आधे 1 घंटे भी अगर काम कर लिया, हो गया ना, इंटर्नशिप हो गया, अपना दिन का काम खत्म हो गया. दो स्टूडेंट्स हु हैव 0 इंटर्नशिप ऑन योर CV, यू नीड 1 इंटर्नशिप एटलीस्ट, just to show that you have some exposure to the real business world also, real management, real company. Your internship should be part time and it should not be like you go to an office and do it. That's not healthy. You don't have time. सितंबर अक्टूबर में कर सकते हो इंटर्नशिप, अक्टूबर नवंबर में कर सकते हो इंटर्नशिप, बिकॉज तुम्हें बताया उसमें मतलब पढ़ना नहीं होता, बट अभी तो बहुत पढ़ना है. सो गो फॉर वर्क फ्रॉम होम एंड पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स. दूसरा, अगर सर्टिफिकेट्स है तो अच्छी बात है, अगर सर्टिफिकेट्स नहीं तो क्या करना है? कुछ नहीं, बनाओ सर्टिफिकेट्स, बनाओ. दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. मेक योर सर्टिफिकेट्स, बिल्ड योर सर्टिफिकेट्स. कॉलेज में अपने बात करिए, जो हैं टीचर्स हैं, HODs हैं, प्रोफेसर्स हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं जो कि कमिटीज़ में है, ये गेट द सर्टिफिकेट्स. इट्स इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव सर्टिफिकेट्स. प्लस कोई बोलेगा सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो क्या मैं जाके कोर्स कर लूँ डिजिटल मार्केटिंग पे? अभी नहीं कर सकते, अब सिर्फ कैट का ही है, वो टाइम चला गया, देयर इज़ नो मोर टाइम. बाद में कर सकते हो. नवंबर में कैट हो जाएगा, इंटरव्यूज़ मार्च में होंगे, अगर तो तुम्हारे पास नवंबर से मार्च टाइम है, उस समय छोटा कोर्स कर लेना. डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो डिजिटल मार्केटिंग में कर लेना. NISM फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो फाइनेंस में कर लेना. हम लोग भी कराएंगे कोर्सेज. अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने NISM का सर्टिफिकेशन कराया था अपने एक स्टूडेंट से. कितने बच्चे उसमें पास हुए, उनको सर्टिफिकेट मिला, और ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं हम लोग, नो मनी. सो बट नॉट नाउ, नॉट नाउ. अभी सिर्फ ये कर सकते हैं कि सर्टिफिकेट्स बनवाएं. इसका मतलब समझ गया ना, सर्टिफिकेट बनवाने का. बनवाएं सर्टिफिकेट्स आप लोग. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. फिर ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की भी जरूरत नहीं है. डू ऑल MBA इंस्टीट्यूट्स हैव रिजर्वेशन? नो, दे डोंट हैव. ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैव रिजर्वेशन. NC OBC EWS बोथ हैव द सेम फॉर्मूला. लेस देन 8 लाख पेरेंटल इनकम. अगर आपके घर में पेरेंट्स का सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है, आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप EWS हो जाएंगे. NC OBC सेम थिंग, 8 लाख से कम होना चाहिए. एंड रिजर्व में और डिसेबल्ड है, ST SC है, बट हर जगह ये नहीं है. इंटरव्यू रिलेटेड अभी वी वोंट डिस्कस राइट नाउ. नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे. व्हाट इज़ द मार्किंग, ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. हाँ, बस ये रुक जाओ. ये सारे स्टूडेंट्स ही हैं. मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बोला तुम लोग को बहुत डाउट्स होंगे, तुम लोग मुझे मैसेज करो अपने डाउट्स. सबने अपने डाउट्स भेजे. हाउ एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन यूट्यूब, मल्टीपल वेबसाइट्स लाइक कोरा? यूट्यूब में एक वीडियो बना दो, ये इंसान नहीं है, ये डॉग है, तो इसको थोड़ी वो डॉग हो जाएगा. वो तो कोई कुछ भी लिख सकता है.
कुछ भी पोस्ट कर सकता है। डोंट गो बाय दीज थिंग्स, यूट्यूब, कोरा एंड ऑल। देखो कोई एक्सपर्ट है तो वो सक्सेसफुल है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है तो इसलिए वो सक्सेसफुल है। वो ये सब जगह क्या कर रहा होगा? व्हाट विल बी डूइंग? कोरा में आंसर करेगा पर्सनली बैठ के लोगों का कि मैं कोरा में जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा। व्हाई विल आई डू दैट? No good person is going to be freely available to guide the masses on these kind of platforms. Those who are freely available, they are available because they are not successful. So they just want to, don't go by any information which is posted on these things. हर दिन कुछ fake information. अभी कुछ fake information चला था कि I am Bangalore, जैसे I am Indore, I am Jammu, I am बोध गया, I am रोहतक, I am रांची। ये IIMs में 5-year MBA स्कूल के बच्चों के लिए चलता है, जिसको हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कहते हैं। बीच में अभी किसी ने फैला दिया आई एम बैंगलोर में भी स्टार्ट हुआ, कोई स्टार्ट नहीं हुआ था। मतलब कुछ कुछ चलता ही रहता है। सम फेक थिंग्स कीप हैपनिंग, डोंट गो बाय दिस। इज वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी? नो, इट इज़ नॉट। है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। मतलब इससे बहुत कुछ जजमेंट नहीं करे कि होगा नहीं होगा क्या होगा। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन Tier 1 एंड Tier 2 कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट्स? सभी कुछ बदल गया ना। जो लोग वहां पर जा रहे हैं वो बदल गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया, ब्रांड बदल गया। ब्रांड लाइफ टाइम है। इफ समवन कम्स टू मी एंड सेज हेलो माय नेम इज राजेश, आई एम फ्रॉम नारसी मोंजी मुंबई, सो व्हाट डू आई डू? इट्स नॉट अ ब्रांड। ब्रांड इज लाइफ टाइम। अब यही मानो one of these kids will come and say that sir I am from IIM Ahmedabad, that's forever, that's for life. The brand will stay with you for the rest of your life. Tier 1 and Tier 2, it's a lifetime difference. Why? Because the brand is lifetime, connections are lifetime, alumni group is lifetime, opportunities are lifetime. टॉप यूरोपियन और अमेरिकन बी स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चे आके ये जो टॉप IIMs हैं और ये सब है वहाँ पर अपना एक सेमेस्टर पूरा करते हैं। Why they are doing it? Because these institutes have a brand name here in India. So brand name is a very big thing. How to avoid silly mistakes? अभी ये नहीं करना है आपको। Preparation, ये test taking पे आता है। Can we cheat in CAT? Yes, you can. Answer is yes. Someone has asked this. Can we cheat? Yes, you can cheat in CAT. But कौन सा पर्चा ले जाओगे? चोरी करोगे कैसे? तुम्हें क्या पता पेपर में क्या आने वाला है? कुछ लेके तो जा नहीं सकते। अच्छा, वहाँ जो लोग बैठ रहे हैं सबके पेपर अलग हैं, उनके क्वेश्चन जम्बल्ड अप कर दिए गए। किसी का क्वेश्चन 6 है, किसी का क्वेश्चन 15 है, किसी का 15-30 है। तो चोरी कैसे करोगे? मतलब हाउ विल यू? होता तो मैं बताता, है नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये वो एग्जाम्स की भी तरह नहीं। आजकल एक नया ट्रेंड चला था, जब कोरोना था आप घर बैठे एग्जाम दे सकते। अरे बहुत बच्चे टॉप कर गए। आई नो पर्सनली मेनी स्टूडेंट्स हु हैव टॉप्ड इन एग्जाम्स, घर बैठे वाले एग्जाम में। ये वो होता नहीं घर बैठो जीतो, वैसे ही था। क्यों? सामने बैठे हैं, दिख रहा है, उधर कोई और भी बैठा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है किसी को। और यहां जो स्क्रीन लगी है उसी स्क्रीन का प्रोजेक्शन दूसरे स्क्रीन में भी लगा हुआ है। बट कैट में यू आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ द इन्विजिलेटर, यू कांट डू मच, यू कांट डू एनीथिंग एक्चुअली। चीटिंग करोगे तो टाइम जाएगा। कैट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइमिंग होती है, तो एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट। सो यू कांट चीट। इफ यू चीट यू विल फेल इन दिस एग्जाम। What is the difference in preparation and test taking for someone who is preparing for mid-90s and someone who is preparing for late 90s? अरे right now you all will prepare for late 90s. Why will you prepare for mid-90s? अभी तो प्रिपेयर करना शुरू किया है, तो अभी तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा नहीं हो सकता है? तुम्हारा होगा कि नहीं तुम्हें अक्टूबर पता लगने लगेगा। By September, October you will know what will happen in CAT. But right now तो you all should prepare for the top institute. Let's go, नीचे जाते हैं। और कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन एजुकेशन लोन? जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इंस्टीट्यूट ही लोन दे रहा है, तो कोई लोन का मतलब देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अभी भी जो बच्चों का IIMs में हुआ है, काफ़ी बच्चे बोल रहे सर खुद से लोन करूँ कि इंस्टीट्यूट वाला जो लोन है, मतलब इंस्टीट्यूट वाले लोन, बिकॉज वो तो पूरे बैच को मिल रहा है, तो बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन, बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस में मिल रहा है। लाइक यू डोंट नीड एनी कोलैटरल और मॉर्गेज और गारंटर, और यू नो योर पेरेंट्स डोंट नीड टू इंटरवीन इफ यू आर गेटिंग अ टॉप इंस्टीट्यूट। सो लोन इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाउ टू जस्टिफाई अ ड्रॉप ईयर? How many of you have a drop year? 1 साल का ड्रॉप है तो चलता है, पता ऐसा कंपलसरी नहीं है। इट्स नॉट कंपलसरी। 2 साल का भी ड्रॉप, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका ईयर ड्रॉप है तो आपका नहीं होगा। इट्स नॉट रिटन। आई हैव अ फ्रेंड इन माई बैच एट IIM कोझिकोड। उसने ग्रेजुएशन बीटेक की 5 साल में की, 4 साल के बजाय फेल कर गया था। तो इसका मतलब थोड़ी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, कोई और कुछ और उसके अंदर कुछ और दिखा होगा इंटरव्यूअर्स को,
उनको लगा होगा वो मार्केटिंग के लिए में भी अच्छा हो सकता है, बिकॉज मार्केटिंग में गया भी, उसको फ्लेयर था मार्केटिंग का. सो इट्स नॉट नथिंग इज कंपल्सरी कि आपका ये है तो आपका 100% नहीं होगा टॉप इंस्टीट्यूट्स में. मैं सिर्फ बोल रहा हूँ मौका अगर है तो आदमी पहले कोशिश करेगा कि कम से कम खामियां हो प्रोफाइल में, जितना कवर अप कर सके हम कर सकें, वो बेटर रहता है. और कोई क्वेश्चन है सुमित? एनी अदर क्वेश्चंस? आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. फाइन. So thank God we have covered most of the questions which are there.